हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। As I have already discussed that I will be releasing revision lectures or revision videos for quite the important topics of income tax for upcoming examinations, that is May 23 examinations. So here in this particular lecture, we are going to revise the whole capital gain head in a particular, in a short quick revision like we did in for PGBP. So पहले हम लोगों ने पीजीपीपी के बारे में पूरा रिवीजन लिया है। आप लोगों को वो वीडियोस अवेलेबल हैं, इफ यू वांट यू कैन वॉच देम एज वेल, एंड उनमें जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस देम। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ आई एम वी आर डिस्कसिंग द हेड्स कैपिटल गेन। हेड्स ऑफ इनकम में हमारे ये दो काफी मेजर और डिटेल्ड हेड्स होते हैं, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। टुडे before directly starting with the head or the sections or the provisions, I'll just give you a very brief introduction about this particular head. When you talk of capital gains or when you talk of any head of income, first of all, it is very important to understand that which incomes would be taxable under this head and which incomes would not be taxable under this head. दोनों ही चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी इनकम्स टैक्सेबल होंगी, कौन सी इनकम्स टैक्सेबल नहीं होंगी, ठीक है। Second most important thing for any particular head is that what is the mechanism of operation, like we discussed in PGBP as well, कि ये particular head कैसे operate होता है, इसमें क्या क्या specific चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। Similarly we are going to do for capital gain. Okay, so let us start the particular head income under the head capital gains. Now काफी हद तक हम लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि कैपिटल गेन मतलब क्या, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम रिवीजन लेक्चर है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट होता है whenever section 45 provides that any profits or gains arising from the transfer of a capital asset in the previous year will be chargeable to income tax under the particular head. So दो बहुत important चीजें हैं। कब ये हेड अट्रैक्ट होगा? whenever during a previous year there is ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट। ठीक है, ये दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की होती हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या है और कैपिटल असेट का मतलब क्या है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट डज कैपिटल असेट मीन। एज पर सेक्शन 214, कैपिटल असेट मीन्स whenever you are reading any definition, whenever you are reading any definition, this I explain a lot of times to students. This I explain always in the first lecture, whichever class I'm teaching income tax, then whether it is CA Inter or Final or CS or any kind of a class where I am teaching income tax, I specifically mention this point even if we are in CA finals, because these small things are sometimes which we do not pay attention to, and then the examination asks us a question depending on that. Whenever a definition starts with means and whenever a definition starts with includes, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस तरफ ध्यान ले जाना चाह रही हूँ, ठीक है। सो मीन्स कैपिटल एसेट मीन्स ओके व्हाट property of any kind whether or not connected with his business, any securities held by foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulations. तो सबसे पहली चीज तो उन्होंने बोला property of any kind held by the assessee whether or not connected with its business. So even if that particular property is connected to the business, that means आपके business की बिल्डिंग जो है वो भी कैपिटल एसेट है, और अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है आपकी बिल्डिंग तो भी वो आपकी कैपिटल एसेट है, ठीक है। थर्ड, एनी यूलिप issued on or after 1st of February 2021 which exemption under 1010D does not apply on account of premium exceeding 2,50,000। ना उन्होंने ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है वो इंटरमीडिएट लेवल से हटा दिया है, ठीक है। डेफिनेशन में है इसीलिए उन्होंने लिखा है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा कोई भी ऐसी यूलिप जो कि 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुई है और उसकी जो पॉलिसी है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, इसीलिए उसके ऊपर 1010D का एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होता। जब वो पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं है तो जब वो मैच्योर होगी तब आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि टैक्स कौन से हेड में दोगे, कैपिटल गेन हेड में दोगे, दैट इज उसको कैपिटल असेट मान करके टैक्स दोगे। तो वो बात यहाँ पर उन्होंने बोली है, ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं वो हमारे इंटरमीडिएट लेवल से उन्होंने हटा दिए हैं, तो इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आ जाते हैं सीधे एक्सक्लूजन पर। लेट अस गो
to the chart that they have given. This chart is very, very important in relation that this has prescribed the definition of capital asset in short and in very concise manner. So let us discuss this chart directly rather than going through the detailed thing, because we are going for a revision. See, capital asset, section 214, property of any kind held by an assessee, whether or not connected with his business or profession. Exclusions, what things have been excluded? स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन. ऑब्वियसली अगर आप स्टॉक या रॉ मटेरियल वगैरह जो आपका रेगुलर इन्वेंट्री का पार्ट है आपके पीजीबीपी हेड में जाएगा, आपके बिजनेस का पार्ट है, तो वो कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगा. लेकिन आपके बिजनेस की जो कैपिटल एसेट है, मतलब आपके बिजनेस की जो फिक्स्ड एसेट्स है, वो कैपिटल गेन हेड में ही टैक्सेबल होंगी. Personal effects, that is movable property, very important to be kept in mind. Personal effects, movable property including wearing apparel and furniture held for personal use. हमने जो personal use के लिए खरीदी है, जैसे कार वगैरह जो है हमारी, तो ये जो सारी movable assets है हमारी personal, ये capital gain head में attract नहीं होंगी. Rural agricultural land, so whenever there is a sale of an agricultural land, it is very, very important to check whether it is a rural or an urban agricultural land. So इसकी एक limits हम लोगों को दी हुई है, हम देखेंगे अभी ऊपर कि कब पता चलता है कि कौन सा लैंड रूरल है, कब पता चलता है कौन सा लैंड अर्बन है. इफ इट इज अ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट. एज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, देन it is not then it is not taxable. If it is a capital, if not capital asset, then it is not taxable. But if it is an urban agricultural land, then you have to keep this in mind that it will be taxable as a normal land. ठीक है, फिर वो भले एग्रीकल्चरल है, वो नॉर्मल लैंड हो जाएगा. कुछ गोल्ड बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के, या कुछ डिफेंस बॉन्ड्स वगैरह हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर करके रखे. नाउ दीज आर द एक्सक्लूजन्स फ्रॉम पर्सनल इफेक्ट्स. ओके, एक्सक्लूजन फ्रॉम पर्सनल इफेक्ट से क्या मतलब हुआ कि ये चीजें हैं जिनको पर्सनल इफेक्ट के बाहर किया गया है. मतलब भले ही ये मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने हमारे पर्सनल यूज के लिए खरीदी हैं, फिर भी इन्हें पर्सनल इफेक्ट से बाहर किया है. Therefore, exclusion का exclusion is an inclusion. This means these things would be a part of our capital asset. ठीक है, तो भले ही कोई ड्राइंग्स पेंटिंग्स हमने पर्सनली हमारे घर के ड्राइंग रूम के लिए खरीदी थी, अब हम उसको सेल कर रहे हैं तो हमको कैपिटल गेन देना पड़ेगा. So jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, any work of art, all these things are included in the definition of capital asset. So this is the definition of capital asset, very, very important. हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले चेक करो कि ये कैपिटल एसेट है कि नहीं. देयर हैव बीन एग्जांपल्स. इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी में भी एक क्वेश्चन आया था, एग्रीकल्चरल लैंड का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था. खैर वो काफी क्लियर था, लेकिन फिर भी उसमें गलतियां होने के चांसेस थे क्योंकि उसमें लिमिट्स ये सब कुछ प्रॉपरली दे रखी थी. तो वहां से बच्चे को क्लिक हो जाता था कि यार ये हमको ये बताना चाह रहे हैं कि पहले चेक करो लैंड एग्रीकल्चरल है तो रूरल है कि अर्बन है, और फिर उस पर टैक्सेबिलिटी निकालो. बट sometimes they write it in such a manner that we do not it does not come in our mind. Like suppose उन्होंने पूरा डिटेल लिख दिया कि परचेज इन असेट ऑन ये फिर इसको सेल किया, फिर ये डिटेल पूरा क्वेश्चन लिख दिया, हमने पूरा सॉल्व भी कर दिया, एंड इनिशियली हमें पता चला कि वो जो चीज थी वो असेट की डेफिनेशन से ही बाहर थी. तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या वो असेट जो ट्रांसफर हो रही है वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आ रही है या नहीं आ रही है. ठीक है, so let us understand how to know whether a particular land is a rural or an urban agricultural land. Only rural agricultural lands are excluded. Agricultural land described in A and B below would be falling within the definition of capital asset. तो उन्होंने डिस्क्राइब हमें किसका किया है, डेफिनेशन हमें किसकी दी है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की दी है. अगर इस डेफिनेशन में फॉल होता है तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा. अगर इस डेफिनेशन के बाहर गया तो फिर वो रूरल हो गया. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, बराबर या ज्यादा चलेगी. एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड और विद इन सच डिस्टेंस, मतलब उस लैंड पे डायरेक्टली कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है लेकिन उस लैंड के विद इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस म्युनिसिपैलिटी है, अगेन दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ urban agricultural land. So if the municipality is within 2 kilometers and the population is more than 10,000, it is an urban land. If the municipality is far than 2 kilometers but within 6 kilometers and the population exceeds 1 lakh, then it is a
again urban land, if the municipality is within like 6 kilometer, within 8 kilometers, then it is and the population is more than 10 lakhs, then it is an urban agricultural land. So एक एग्जांपल लेके देखते हैं. देखो 5 किलोमीटर है और 12 लाख का हमारा वो है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है. तो देखो 5 किलोमीटर मतलब किस में आ गया हमारा, सेकंड वाले केस में, कि 2 किलोमीटर से ज्यादा लेकिन 6 किलोमीटर या उससे कम, और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है. तो क्या ऐसा केस हो रहा है? हाँ. पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, हाँ. देन इट इज एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. क्या बोला है? देखो, इज द लैंड सिचुएटेड अ कैपिटल एसेट? यस, इट इज अ कैपिटल एसेट. आई बात समझ? सिमिलरली हम एक और कोई सा देख लेते हैं. 9 किलोमीटर मतलब हम चले जाएंगे यहाँ पर. 9 किलोमीटर है तो सीधे सीधे क्या हो गया? नो. ठीक है, डिस्टेंस 9 किलोमीटर है तो नो. 8 किलोमीटर हो गया. 7 किलोमीटर वाला देख लेते हैं. एक 7 किलोमीटर मतलब यहाँ पर आएगा पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs. No, population is not more than 10 lakhs. Then it is a rural land. Therefore, no tax will be chargeable. This is to be kept in mind. Very important to be kept in mind. Okay. चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. Now, moving on to the second very important definition of what we talked about is transfer. पहले हमने बात करी कैपिटल गेन हेड इज अट्रैक्टेड व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट. ठीक है, तो हमने बात करी कि कैपिटल एसेट क्या है. अब भैया कैपिटल एसेट ये तो पता चल गया, लेकिन उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है. अगर उसका ट्रांसफर हुआ है तो ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. तो अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीजों को ट्रांसफर माना जाता है और कौन सी चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाता है. ठीक है. कंटेन्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. इंक्लूड्स, ट्रांसफर इंक्लूड्स. ठीक है, अंतर समझ में आया? हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट और extinguishment of rights. Compulsory acquisition is again treated as transfer. Owner conversion of the asset into stock in trade by the business carried on by him. तो suppose कोई रियल एस्टेट डीलर है, उसने कोई लैंड एज अ कैपिटल एसेट खरीदी थी, लेकिन फिर उसने उसको सेल करने के लिए अपने स्टॉक में ले लिया. दिस इज अगेन ट्रांसफर. उस असेट का फॉर्म चेंज हुआ, कैपिटल एसेट से स्टॉक में आ गया. इट इज अ ट्रांसफर. मेच्योरिटी ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दीज पॉइंट्स आर treated as transfer. and इसके अलावा भी any other transaction जो कि definition और conditions fulfill कर रहा होगा वो 47 में include हो जाएगा, because it is an inclusive section. okay, so this is what you need to understand about transfer. तो अब यहाँ पर हमने बात करी कि क्या हमारा ट्रांसफर होता है, क्या और क्या हमारा कैपिटल एसेट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं that what are the types of capital gains. okay, like हमारी कोई एसेट ट्रांसफर हुई, ठीक है, क्या कोई भी एसेट का ट्रांसफर एक जैसा ट्रीट किया जाएगा? तो नहीं. दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग. ओके, पीरियड ऑफ होल्डिंग विल लेट यू नो दैट which are the types of capital gains. So basically, broadly speaking, there can be two types of capital gains or losses. That is, either the capital gain or loss can be a short-term capital gain or loss, or it can be a long-term capital gain or loss, depending on the period of holding for which the asset was held. And that determines that whether the capital asset is a short-term capital asset or a long-term capital asset. बात समझ में आई? The next we are talking about that which assets are said to be short-term and long-term capital asset. As per 242A, a short-term capital asset means a capital asset held by an assessee for not more than 36 months. सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, इन सारे टर्म्स में हमें ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू में क्या होता है. क्या बोला है उन्होंने? नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो कम चलेगा और बराबर भी चलेगा. मतलब अगर 36 मंथ से कम होल्डिंग है या एग्जैक्टली 36 मंथ का होल्डिंग है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो आपकी इन सब नॉलेज को टेस्ट करते हैं. स्पेशली जैसे टीडीएस में ये बहुत बार होता है. अगर आपकी कोई लिमिट है विच इज नॉट मोर देन 10 lakhs, ठीक है, तो नॉट मोर देन 10 lakhs में वो क्या करते हैं कि अपन लोग लिमिट याद रख लेते हैं कि भैया 10 लाख. जैसे इसी में मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या ध्यान रख लेते हैं कि 36 महीना, 24 महीना, 12 महीना पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि कब 26, कब 24, कब 12. लेकिन अगर एग्जैक्ट 12 मंथ्स का क्वेश्चन आ गया तो कि 14 जून 2021 को खरीदा और 14 जून 2022 को बेच दिया, अब शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म कंफ्यूज हो गए. आई बात समझ? सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या यूज करी है ना.
नॉट मोर देन, लेस देन, दोनों में अंतर हो जाएगा। चलिए, short term, otherwise long term. However, again, as I always say, income tax is an act of exceptions. So there are some exceptions to the general rule. There are some assets जिनमें period of holding 12 है और किसी में 24 भी है. So securities listed in a recognized stock exchange, okay, securities which are listed in a recognized stock exchange will be treated as long term as soon as you cover a period of 12 months. Okay, unit of equity oriented fund or unit of UTI, that is unit trust of India, zero coupon bond, इन पे लगेगा 12 महीना. Unlisted shares, listed security, ठीक है, ये बातें होती है इंपॉर्टेंट. और जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तब आपको इन सब बातों पे बहुत ध्यान देना जरूरी होता है. क्योंकि क्या होता है, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको चैप्टर नया है आपके लिए, तो आपके लिए सभी कुछ नया है. लेकिन जब हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तब हमारे पढ़ने के तरीके में चेंज आना जरूरी है. हमारे दिमाग में इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट होना चाहिए, है ना. ऐसे पढ़ लिया सिक्योरिटीज लिस्टेड, हाँ ठीक है, हो गया. अब एग्जामिनेशन में उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, अनलिस्टेड डिबेंचर्स वर ट्रांसफर्ड ऑन ये. आप कंफ्यूज हो गए कि यार अनलिस्टेड में क्या था, अनलिस्टेड डिबेंचर्स में क्या था, आ रही है बात समझ में. और लिस्टेड डिबेंचर्स दे दिया तो क्या, ठीक है. सो लिस्टेड में उन्होंने बोला है सिक्योरिटी 12 महीना, शेयर्स अनलिस्टेड 24 महीना. देयरफॉर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इज 36 months. Getting the point? Land or building or both. You need to be very specific. You don't need to learn unnecessary things, but you need to focus on the necessary things a lot. Land or building or both, again 24 months. So these are the concepts of period of holding. तो हमने क्या क्या बात करी अभी तक, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी. क्या कि कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है. जब आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, मतलब ट्रांसफर करते हो, आई विल नॉट यूज द वर्ड बेचते हो बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट इनकम टैक्स वांट्स, इट वांट्स ट्रांसफर. So you should write transfer, not sale, because sale is a small term, transfer is a broader term. So whenever you are transferring a capital asset, you attract capital gain head. Then this can be a short term or a long term gain. So when it is a short term, when it is a long term, we discuss that. Now we are moving forward to calculation, a very basic format of calculation. Okay, I'm going to explain you a very basic format of calculation of capital gain. It is very simple to calculate capital gain. Okay, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, capital gain head ना बहुत easy है, बहुत ही easy है. क्योंकि कैलकुलेशन में दिमाग ही नहीं लगाना है. देखो, कोई सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं मुझे पेन बेचना है और मुझे पता करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये हम लोग बचपन से जानते हैं. शायद हम लोग जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में होंगे तब से, कि भैया जितने में खरीदा जितने में बेचा डिफरेंस निकालो, गेन या लॉस आ जाएगा. तो फॉर्मेट तो वही है कैपिटल एसेट का, कि कैपिटल एसेट कितने में खरीदी कितने में बेची, डिफरेंस निकालो, गेन या लॉस आ गया. बट कैपिटल गेन हेड में दिक्कत कहाँ आती है, बहुत सारे स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा. फॉर्मेट बहुत सिंपल है, कंप्यूटेशन बहुत सिंपल है, पर उस कंप्यूटेशन में उन्होंने स्पेशल केसेस बहुत सारे डाल के रखे हैं. तो जब भी कैपिटल गेन पढ़ो, आपको उन स्पेशल केसेस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब क्वेश्चन रीड करें, तब ये जरूर ध्यान दें कि ये कोई स्पेशल केस तो नहीं है, ठीक है. अदरवाइज यू कैन गो नॉर्मली, एंड नॉर्मली एग्जाम में सिंपल तो आने से रहा है ना. चलिए, सो व्हाट इज द फॉर्मेट in a very simple language? First of all, you have the sales consideration, kitne mein becha, less if there are any transfer expenses that would be given in the question, any brokerage etc, that gives us to the net sales consideration, less cost of acquisition or cost of improvement. या आ जाएगा आपका कैपिटल गेन या लॉस. अगर गेन है और आपने उसको एग्जेम्पशंस में इन्वेस्ट कर दिया है ना, 54F इन सब में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका वो नेट टैक्सेबल गेन निकल के आ जाएगा, जिस पर आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करोगे. ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट. इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, देन यू आर सपोज टू कैलकुलेट इंडेक्सेशन, है ना, इंडेक्सेशन लगाना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू चेंज द इंडेक्सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. हम नीचे टेबल देखेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो चेंज हो गया है फॉर द कमिंग ईयर. सो if you are like you have already studied for November 22 and now you are solving the questions, if you have old modules, keep this in mind that your indexation value has been changed. So आपके तरीके एसेट कैपिटल में बहुत कोई अमेंडमेंट नहीं है, आपके तरीके कुछ नहीं बदलेंगे कैलकुलेट करने के, लेकिन आपका इंडेक्सेशन फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन, अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन. नाउ let us go to the next section, that is the first section of PGB capital gain, section 45, that is scope and year of chargeability. अब
क्या पढ़ रहे हैं हम कि हमारे कैपिटल गेन हेड में कौन से स्कोप चीजें कवर होती हैं और कौन से ईयर में उनकी टैक्सेबिलिटी आती है, स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। ओके, चलिए नाउ एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स, फर्स्ट जनरल प्रोविजन तो हमने पढ़ ही लिया। विच ईयर इज द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी? प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ठीक है, जिस साल हमारा ट्रांसफर हुआ है उस साल हमारी चार्जेबिलिटी आएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने 24 फरवरी 2022 को कोई एसेट ट्रांसफर करी तो उसकी टैक्सेबिलिटी कौन से प्रीवियस ईयर में आएगी? प्रीवियस ईयर 21-22। सिंपल। बट अगेन there are some specific cases, there are some special cases, so let us understand them. Insurance receipts, whenever there is any kind of say for example destruction or kuch loss in any property, then in that particular case you are receiving any insurance receipt. Suppose किसी की दुकान में आग लग गई, सामान खराब हो गया, उसके बदले में उसको क्या मिल गया? इंश्योरेंस की receipts. In this particular case you are supposed to calculate the tax in the previous year in which the money was received. ठीक है, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी ने वो दिया बदले में कोई असेट या पैसा, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है जिस साल आग लगी उस साल नहीं। सेकंड, consideration will be whatever the insurance company has given. If it has given you money or if it has given you any asset in return, that will be your full value of consideration. Conversion of a capital asset into a stock in trade, very very important point. Okay, so the year of transfer is when your asset is converted, but the taxability will arise in the year in which the stock in trade is actually transferred. तो conversion of capital asset into stock in trade, suppose 2014 में खरीदा, 2018 में इसको ट्रांसफर कर दिया और 2022 में अपन स्टॉक बेच रहे हैं। खरीदा था तब कैपिटल एसेट था, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया और अब अपन इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। टैक्सेबिलिटी दोनों की इधर ही आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कैपिटल गेन लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पीजीबीपी टैक्सेबल होगा। टैक्सेबिलिटी दोनों की 2022 में आएगी, पर इन्फ्लेशन इंडेक्स आप कहाँ तक का लगाओगे? 18 तक का, क्योंकि ये 18 तक ही कैपिटल एसेट थी, उसके बाद ये कैपिटल एसेट नहीं थी। सो क्या लिखा है देखो, दोनों गेन्स कौन से ईयर में आएंगे? कौन से ईयर में आएंगे? बोथ इनकम्स आर चार्जेबल टू टैक्स इन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा तब। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, FMV on the date of conversion will be treated as the full value of consideration. So 2018 में जिस दिन हमने कन्वर्ट किया उस दिन इस स्टॉक का जो फेयर मार्केट वैल्यू था दैट विल बी डीम्ड टू बी द सेल्स कंसिडरेशन, क्योंकि एक्चुअली तो बेचा नहीं तो सेल्स कंसिडरेशन तो है नहीं, माइनस कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन इंप्रूवमेंट जो भी है। इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी इनटू द ईयर ऑफ कन्वर्जन, उसी साल तक का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तो सिंपल है, सेल प्राइस जितने में बेचा माइनस FMV, तो वो FMV जो यहाँ पर सेल्स कंसिडरेशन होती है यहाँ पर क्या हो जाती है? एक तरीके से कॉस्ट ऑफ परचेज। उस स्टॉक के लिए वो क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, दिस इज द केस ऑफ योर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, conversion of a capital asset into stock in trade. Compensation on compulsory acquisition, whenever there is a compulsory acquisition, again जब सरकार आपको कोई लैंड कंपल्सरी एक्विजिशन में ले लेती है तो कोई गारंटी नहीं है उसका कंपनसेशन कब मिलेगा, है ना। लैंड तो आज चली गई, कंपनसेशन 1 साल 2 साल 3 साल में मिल सकता है, तो अभी से टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या बोला? तब टैक्स दो जब आपको सरकार से कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा। सो क्या बोला है? चार्जेबल एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच कंपनसेशन इज received. Okay, when you are receiving the compensation in that particular year you have to calculate the tax. Enhanced compensation, अगर आगे चल करके आपने गवर्नमेंट में वहां पर कोर्ट में केस लगा दिया कि भैया हमारा कंपनसेशन बहुत ही कम है और उन्होंने आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया है, दैट एनहांस्ड कंपनसेशन अगेन विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, and in that case the cost of acquisition would be nil because आप cost of acquisition already cover कर चुके हो। ठीक है, तो cost of acquisition in that case would be nil. Moving on, in persons of an interim order will be deemed in the final order. So suppose अभी temporary order आया है, आपका finalization नहीं हुआ है केस का और कुछ थोड़ा बहुत compensation मिल गया है, अभी नहीं, जब final order आएगा, final figure आएगा तभी taxable होगा। अगर enhanced compensation reduce हो गया तो फिर you have to calculate the like your capital gain
अगेन एक तरीके से वो रेक्टिफिकेशन का केस हो जाता है। वो डिटेल में आप लोग फाइनल्स में पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन वगैरह क्या होता है, बट एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, आपका 155 सेक्शन होता है, वो यहाँ पर लिखा होगा कहीं इन्होंने नीचे नोट्स में, हाँ 155, वो भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, कि आपका एक तरीके से रिकम्प्यूट होगा, क्योंकि अब कंपनसेशन मिल गया था, आपने गेन लगा के टैक्स दे दिया, अब आपका कंपनसेशन कम हो गया, तो आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए। स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, नाउ व्हाट इज द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट? दिस इज बेसिकली लैंड डेवलपमेंट अग्रीमेंट। सपोज मेरे पास एक बार खाली जमीन पड़ी थी जिसका कोई यूज नहीं था, एक बिल्डर था जिसको खाली जमीन चाहिए थी, सो हम दोनों ने मिला, हम दोनों ने सोचा एक काम करते हैं कि एक अग्रीमेंट करते हैं, मैं मेरी लैंड आपको दे दूंगी, बेच नहीं रही हूँ, आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर आप क्या करो, बिल्डिंग बनाओ, और क्योंकि मैंने आपको मेरी लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाने का राइट दिया है, तो आप मुझे जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन होगा उसका ग्राउंड फ्लोर मेरा, और बदले में साथ में 10 लाख रुपए नकद, ये मुझे चाहिए, तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओ और बेचो। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ऑन माय लैंड। इन दिस पर्टिकुलर केस अगेन there is something which is a transfer, the right has been transferred, I have given the right to construct the property on my land, therefore in this particular case what happens is कि लैंड की राइट्स तो मैंने आज ही दे दी, अब आज की आज तो रातों रात कंस्ट्रक्शन होना नहीं है, कंस्ट्रक्शन होगा 1.5 साल में, मुझे फिर उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिलेगा, मतलब वो जो ग्राउंड मेरा है, ग्राउंड फ्लोर जो मैंने लिया है, तो मैं अभी से टैक्स कैसे दे दूं? तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर एक कंसेशन दिया है। अगेन दिस कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली with the help of a flow chart which they have given. The flow charts given in the modules are very very helpful, trust me। आप कुछ इधर उधर ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं है, you can just go through the modules, the let us recapitulate given in the end, you can go through all these flow charts, and along with that if you want short notes, I have a PDF of notes which I have prepared for each and every chapter, in which I have covered the chapters and in the forms of flow chart, so that becomes easy to understand. You can take that, but you do not need to refer a lot of extra material or something if you go through your modules very properly. So this is in this you will get the whole chapter of capital gain in all these forms, like ऐसे ही पूरा आपको pointers में, this is just for the one day revision, okay? This is not something which will give you a कि कैसे लिखने हैं आंसर्स वाला idea, but these notes I have prepared with the intention that you will whenever you are like sitting for the examination, कि अब बस मुझे सिर्फ एक क्विक रिकैप चाहिए कि 10 मिनट में मुझे पता चल जाए कैपिटल गेन क्या है, वो आपका काम इससे हो जाएगा। ठीक है, सो दिस यू कैन डू। मूविंग ऑन, वापस आ जाते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ, दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, बाकी केसेस में कोई कंसेशन नहीं है, बाकी केसेस में आपके ऊपर नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, जिस साल राइट्स दे दिए तभी टैक्स देना है, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को कोई जेन्युइन हार्डशिप ना हो इसीलिए उन्होंने कंसेशन दिया है। स्पेसिफाइड अग्रीमेंट is the individual transferring. Now what do you need to check? Suppose मैं मिस्टर ए हूँ, है ना, मैंने मिस्टर बी के साथ वो किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने मेरी लैंड इनको दी और इनको बोला कि जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे उसकी पूरी की पूरी ग्राउंड फ्लोर आप मुझे कंसिडरेशन में देना, प्लस 5 लाख रुपए मुझे वो चाहिए, बैंक में चाहिए, है ना, चेक चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, मैंने भी बोला ठीक है, बात चालू हो गई। अब कंस्ट्रक्शन हुआ, है ना, सवाल ये है कि मुझे इस पर टैक्स कब देना है, अभी या जब मुझे ग्राउंड फ्लोर मिलेगा तब? वो डिपेंड करेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है, क्या मेरा वो ग्राउंड फ्लोर खुद के पास रखने का इंटेंशन है, या मेरा वो ग्राउंड फ्लोर तुरंत किसी दूसरे को बेच के उससे प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है। अगर सेकंड केस है तो मुझे कंसेशन नहीं मिलेगा, अदरवाइज मुझे कंसेशन मिलेगा। तो क्या कंसेशन है कि आपका टैक्सेबिलिटी जो है वो डिफर हो जाएगा। देखें क्या लिखा है, इज द इंडिविजुअल ट्रांसफरिंग हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट, मतलब ग्राउंड फ्लोर, आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब मैंने पहले वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, फिर मैं किसी और को बेच रही हूँ, फिर वो कभी भी हो सकता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, तो अगर ऐसा है, हाँ, कैपिटल गेन वुड अराइज इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज इश्यूड, मतलब सरकार ने क्या बोला कि भाई मतलब तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर लेने में इंटरेस्ट था, उसको तुरंत बेचने का तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तो तुम बाद में टैक्स दो, चलेगा, जब आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उस साल टैक्स दो, चलेगा। और क्या कंसिडरेशन होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट प्लस कैश कंसिडरेशन विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नो, अगर इसका आंसर नो है, मतलब
द इंडिविजुअल एचयूएफ इज ट्रांसफरिंग ऑन और बिफोर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे कि मेरे पास राइट्स तो आ गए हैं कि जब वो प्रॉपर्टी बनेगी तब उसका ग्राउंड फ्लोर मेरे नाम किया जाएगा, यही राइट्स मैंने किसी तीसरे को बेच दिए कि भाई जब वो प्रॉपर्टी बनेगी तो वो ग्राउंड फ्लोर जो मेरे नाम होने वाला था वो मैं तेरे नाम करता हूँ, खत्म, मुझे आगे कुछ नहीं मिलने वाला। इन दिस केस अभी ही टैक्स देना पड़ेगा। यस, capital gain tax liability would arise in the previous year in which the property is handed over to the developer। जब मैंने डेवलपर को दिया उसी साल मुझे टैक्स लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ specified agreement. These are the special cases of taxability under the head capital gain. Okay, now we'll be discussing again special cases of period of holding। जैसा कि मैंने बताया capital gain is full of special cases, so we need to focus a lot on those things। Okay, चलिए let us continue। So as I told you, now we are moving towards the special cases of period of holding and transactions that are not regarded as transfer। So first we'll discuss about the transactions which are not regarded as transfer। Now this makes us understand a very important term, transactions not regarded as transfer। ये वो transactions हैं जिसमें actually transfer हो रहा है, मतलब कोई एक असेट किसी दूसरे असेट के पास किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है, ठीक है, असेट एक तरह से दूसरे जगह के पास जा रही है, पर कैपिटल गेन हेड में स्पेसिफिकली बोला है कि इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो बात समझ में आ रही है? ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सो क्या बोला है देखें, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अ गिफ्ट और अ विल, अंडर अ गिफ्ट और विल अगर आपको कोई एसेट मिलती है, मतलब मुझे अगर कोई एसेट एज अ गिफ्ट मिली है, देन अगेन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। अब जब कोई ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसका रिपरकशन क्या होगा या उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो समझते हैं हम। ऐसा माना जाएगा जैसे वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं विल, ठीक है, तो मुझे विल में इनहेरिटेंस में एक लैंड मिला। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड था जो कि मेरे मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने विल में मेरे फादर को पास ऑन किया। ठीक है, तो वो उनको वो लैंड एज अ विल अंडर इनहेरिटेंस रिसीव हुआ। उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन हुआ इनकम टैक्स की नजरों में वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब अगर मेरे फादर उस एसेट को सेल करेंगे तो जो रिपरकशन होगा वो हमें समझना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो वेन एवर दीज ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन, वो जो बीच का ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। मतलब एक तरीके से अगर मैं और इसको क्लैरिफाई करूं तो सपोज ये ग्रैंडफादर है ना, देन उसके बाद फादर है और देन उसके बाद सन है। यहाँ पर एक लैंड थी, इन्होंने विल में इनको दी, यहाँ पर आई, यहाँ इन्होंने खरीदी, ठीक है, परचेज इन्होंने किया, विल में इनके पास आई, इसके पास से इसके पास आई। सन उस लैंड का ध्यान नहीं रखना चाह रहा था, सन का कोई इंटरेस्ट नहीं था उस लैंड में, तो सन ने उस लैंड को सेल कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रांजेक्शन और ये जो ट्रांजेक्शन है दोनों, ये ट्रांसफर माने ही नहीं जाएंगे। मतलब एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि लैंड इधर खरीदी गई और इधर क्या हुई, सेल हुई। बीच के ट्रांजेक्शन्स का इनकम टैक्स में कोई ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रही है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब क्या, कैपिटल गेन उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा। कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी व्हिच इज एन इंडियन कंपनी, अगेन इफ इट इज अ होली ओन्ड कंपनी, इट इज एन इंडियन कंपनी, यू विल नॉट ट्रीट इट एज ट्रांसफर। होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया। सिमिलरली उल्टा, सब्सिडरी टू इट्स 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी, you are not supposed to treat that transaction as transfer। this will not be applicable in case of stock in trade। again stock in trade में वैसे भी आपका कैपिटल गेन के रूल्स नहीं लगेंगे, तो अगर वो कैपिटल एसेट एज अ स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर हुई है तो ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर किया जो कि इंडियन है, अगेन दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ट्रांसफर of an asset by demerged company to resulting Indian company under a scheme of demerger। so demerger हो रहा था, ए जो है वो स्प्लिट होकर के ए और बी में बट गई, तो ए की जितनी भी असेट्स हैं उनमें से कुछ ए के पास ही रह गई, कुछ नई कंपनी के पास गई, बी के पास, विच इज अ रिजल्टिंग कंपनी। इसको क्या कहा जाता है, रिजल्टिंग कंपनी, है ना। तो इसके पास गई कुछ असेट्स, अगेन दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मूविंग ऑन अहेड,
transfer or issue of shares by resulting company in a scheme of demerger. Any transfer or issue of shares by the resulting company in a scheme of demerger to the shareholders if the transfer is made in consideration of demerger company. अब amalgamation और demerger के केस में दो अलग अलग तरीके के ट्रांसफर्स की बात होती है. देखो ध्यान से समझो, amalgamation और demerger में एक कैटेगरी है ट्रांसफर ऑफ असेट्स. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ असेट मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास असेट ट्रांसफर हुई, जैसे ये वाला एग्जांपल हुआ. वैसे ही अमालगमेशन में क्या होता है, ए और बी मिल करके ए बी हो गए, है ना. तो ए की जो भी असेट्स थी वो अब किसके पास आ गई, ए बी के पास. ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. ये हुई एक बात. दूसरी बात होती है शेयर होल्डर्स का ट्रांसफर. जब कोई कंपनी अमालगमेट होती है तो सपोज आप ए कंपनी के शेयर होल्डर थे, ए और बी मिलकर के ए बी हो गए. आप ए कंपनी के शेयर होल्डर थे, सपोज आपके पास 50,000 शेयर्स थे. इन शेयर्स के बदले आपको ए बी कंपनी के 45 शेयर्स मिल गए, है ना. अमालगमेशन हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. सो आपको 50,000 के बदले ए बी कंपनी के 45,000 शेयर्स मिल गए. तो एक एसेट गई, एक एसेट आपके पास आ गई. अगेन ये ट्रांजेक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, इन्हें ध्यान से समझना है. यहाँ पर देखो कैपिटल एसेट बोला है, यहाँ पर इशू बोला है. सिमिलरली यहाँ पर अमालगमेशन का बोला है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन. शेयर होल्डर इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन हेल्ड बाय हिम इन द अमालगमेटिंग कंपनी, तो वो आपके हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. गेटिंग द पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट. तो कोई बॉन्ड है जो इंडियन रूपी में डिनोमिनेटेड है, नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को बेच रहा है, भले ही रूपी में डिनोमिनेटेड है लेकिन ट्रांजेक्शन इंडिया के बाहर हो रहा है, नॉन रेसिडेंट्स के बीच में हो रहा है. इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया. ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय एनआर टू अनदर एनआर, अगेन नॉट टैक्सेबल. रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, दीज आर सम आरबीआई रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड बॉन्ड्स, देयरफॉर दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्सेबिलिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है. अब यहाँ पर मैं आपको कह रही थी, जो मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि कैपिटल एसेट है कि नहीं वो आपको समझना जरूरी है. वैसे ही ट्रांसफर की डेफिनेशन में अगर नहीं आएगा तो टैक्स नहीं लगेगा. ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको ध्यान नहीं आती हैं बहुत बार. जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक कोई एसेट है जो कि गवर्नमेंट को बेची गई, विच इज नेशनल सिक्योरिटी एसेट. अभी तो मैं पॉइंट पढ़ा रही हूँ इसलिए आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन जब आप बहुत सारे कोर्स के साथ एग्जाम में बैठते हो ना, तभी जिस दिमाग से क्लिक नहीं होती है. ठीक है, कि अपन को यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कार वो जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, हम लोगों ने वो कन्वर्जन वाला जो पॉइंट पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वहीं पर एक एग्जांपल था मुझे याद है मॉड्यूल में. ये सी, ए इज द ओनर ऑफ अ कार. On 1st of April 2022, he starts a business of purchase and sale of his motor cars. He treats the above car as a part of stock in trade. अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो पूरा दिया है उन्होंने, है ना, प्रॉपर. अब जो व्यक्ति ने क्या किया, पूरा व्यवस्थित सॉल्व कर दिया, सब चीजें लिख भी दी, इंडेक्सेशन वगैरह जो भी है सब लिख दिया, और बड़े अच्छे से हमें लगा कि अरे हम तो पूरा सही करके आए हैं. अब अगर आप ध्यान से देखो, ए इज द ओनर ऑफ अ कार, कार इज अ पर्सनल एसेट, तो सीधे के सीधे आप कैपिटल गेन से बाहर हो गए. बात समझ आई. तो यही चीज हमको ट्रांसफर में भी ध्यान रखनी है कि अगर वो ट्रांजैक्शन जो अफेक्ट हुआ है उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से सरकार ने स्पेसिफिकली बाहर करके रखा है, तो आप उस केस में कैपिटल गेन कैलकुलेट ही नहीं करोगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. तो ये सारी असेट्स अगर हैं, सपोज कोई आपके से फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रैंडफादर के पास इंडिपेंडेंस से पहले की कोई किसी राजा का कुछ, या कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, या ऐसा कुछ भी है जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को लेकर के या हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, और आपको गवर्नमेंट को या किसी म्यूजियम वगैरह को देते हो, तो फिर अगेन दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर. नॉर्मली इसके बदले में भी आपको कंसिडरेशन मिलता है, बट आपको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इनटू शेयर्स, अगर कोई बॉन्ड्स है जो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, या शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो गए, सब हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है ना. शेयर्स के बदले शेयर्स मिल गए, बॉन्ड्स के डिबेंचर्स के बदले शेयर्स मिल गए. कन्वर्जन ऑफ एन एसेट, अगेन दैट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर. प्रेफरेंस टू इक्विटी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी डिफरेंट पॉइंट. रिवर्स days in who have their own houses, who have their properties, but they do not have anyone to look after them, plus
they do not have any kind of regular income, so what they can do, they can give that property to a scheduled or a specific bank which has been authorized to do this transaction. वो बैंक को वो लैंड दे देंगे, वो घर दे देंगे, घर दे देंगे इन द सेंस एक तरीके से मॉर्गेज पे रहेगा, रहेंगे वही लोग उस घर के अंदर, घर नहीं देना है, लेकिन उस घर की जो भी वैल्यू वगैरह निकाल करके बैंक उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दे देगी, लोन। नो एग्जैक्टली नॉट अ लोन, यू कैन ऑल्सो टेक इट एज एन एन्युइटी, और उससे आपको पैसा मिलता रहेगा। सपोज हर महीना कैलकुलेशन हुआ कि 25,000 आपको हर मंथ मिलता रहेगा, जो भी सीनियर सिटीजन है उनका रेगुलर खर्चा वर्चा चलता रहेगा। आफ्टर द डेथ an option is given to the legal heir that if they want they can clear the loan that has been taken by their parents till their life, and then they can take the property. But if the legal heir refuses to repay the loan, then the bank will sell the property and it will repay the loan, and the remaining amount will be given to the legal heir. Suppose वो प्रॉपर्टी बेच करके 50 लाख रुपए आए, और जब वो जितना भी लोन उठाया था वो 35 लाख था, तो 35 लाख इंटरेस्ट वगैरह लेकर के बैंक अपने पास रखेगी, बचा हुआ उनके बच्चों को दे देगी। दिस transaction, that is the asset being passed to the bank, again this is a transfer but not regarded as transfer. तो क्या बोला है, transfer in transaction of reverse mortgage under a scheme and notified by the reverse government is not treated as a transfer। ये पूरा उन्होंने स्कीम को एक्सप्लेन करा है कि रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, कैसे उसका कितने साल तक उसके पेमेंट्स मिलते हैं वगैरह। दिस ऑल इज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबिलिटी, दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज अ रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ओके, सो ऑल दिस ट्रांजैक्शन is not treated as a transfer. Any transfer of a capital asset in a transaction and notified by central government would not amount to transfer. However, आगे चल करके जब बैंक उस असेट को सेल करेगी तब उसको ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, अभी जो सीनियर सिटीजन है वो बैंक को दे रहा है, उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर उन्होंने नहीं कंसिडर किया। ये देखो, अभिषेक अ सीनियर सिटीजन मॉर्गेज्ड विद अ बैंक अंडर अ रिवर्स mortgage scheme, he was getting loan in monthly installments, did not repay the loan and hence gave the position to the bank to discharge his loan. How will the treatment of long term loan provides that any transfer in a transaction reverse mortgage notified shall not be considered. Accordingly, mortgaging with bank will not be regarded as transfer. No capital gain. Provides that the amount received by senior citizen either in lump sum or installment is also exempt. Therefore, monthly installments received would not be taxable. दोनों ही चीजें आपके लिए नॉन टैक्सेबल है। ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है ज्यादातर जो लोग सीनियर सिटीजन है, जिनकी कोई एक्टिव इनकम भी नहीं है और ना कोई देख रहा है। जैसे दिस कैन बी सीन वेरी कॉमन है ना नाउअडेज, दैट देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर देम, सो दे हैव अ मॉनेटरी सिक्योरिटी एटलीस्ट, कि प्रॉपर्टी है तो उससे अपने को एक मॉनेटरी सिक्योरिटी आ रही है। सो यहाँ पर हमारे ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर के बारे में हमने बात करी। अब देखो, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आगे चलता है एक स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा स्पेशल केसेस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग यू विल से कि मैम हमने तो पढ़ा कि 24 महीने कहाँ है, 12 महीने क्या है, 36 महीने कहाँ है। यस, बिल्कुल हमने पढ़ा, लेकिन हम लोगों को कुछ स्पेशल केसेस दिए हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग के, जो कि सेक्शन 47 से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको पहले 47 पढ़ाया। कैसे रिलेटेड है समझे। मैंने आपको वो ग्रैंडफादर वाला और वो वाला एग्जांपल दिया था, है ना, कि दादाजी से आया पापा के पास, पापा से आया बेटी के पास, है ना। नाउ यहाँ पर एक लैंड था, ठीक है, वो यहाँ पर इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर सेल हो गया, यहाँ पर परचेज हुआ था दादाजी के पास। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, दैट दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, दिस ट्रांजेक्शन इज आल्सो नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर सीधे कहां पर अफेक्ट हुआ, यहाँ पर। सवाल ये उठता है कि जब हमको चेक करना है कि वो असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म तो हमें क्या देखना जरूरी है कि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है ना। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि उस असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो असेट जो सेल हो रही है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। और जब तक हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि वो असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, पहली चीज हम गेन सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दूसरा हम टैक्स भी सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। हम सब जानते हैं टैक्स रेट्स भी अलग है, गेन भी कैलकुलेट करने का तरीका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अलग अलग है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से गिनना है, तो क्या बोला गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया बीच के ये जो ट्रांजेक्शन हुए इनको हम तो ट्रांसफर मान ही नहीं रहे, मतलब हमारी नजरों में तो ये कोई ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं। मतलब एक तरीके से ये असेट यहाँ से सीधे यहाँ पर क्या हुई, सेल,
यहाँ पर परचेज हुई, यहाँ पर सेल हुई. सो पीरियड ऑफ होल्डिंग in this case will include the period of holding for which the asset was held by the previous owner as well. मतलब अगर अपन इस कहानी को समझने की कोशिश करें तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग में पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड होगा टू कैलकुलेट वेदर द एसेट इज अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म असेट. आई बात समझ? तो हम वो सारे केसेस पढ़ रहे हैं जब पीरियड ऑफ होल्डिंग नॉर्मल तरीके से नहीं निकाली जाएगी. नॉर्मल तरीका क्या हुआ? मैंने असेट खरीदी, मैंने बेच दी, जितने समय मेरे पास वो असेट थी वो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग हुआ. दिस इज द नॉर्मल रूल, है ना? विच इफ इट इज 24 months, if it is 12 months, it is 36 months. But if the asset that did not come to me directly by acquisition, then what would be the period of holding? This is what we are discussing. So see, special cases of period of holding. Shares held in a company in liquidation. Period subsequent to the date of liquidation shall be excluded. कोई कंपनी है जो लिक्विडेट हो रही है, मैंने उस कंपनी में शेयर्स खरीद के रखे थे, लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है. अब पहले सारे क्रेडिटर्स को रीपेमेंट होगा, फिर इसको उसको इसको फलाना सबको देने के बाद लास्ट में मेरी टर्न आएगी. आई विल बी गेटिंग द मनी एट लास्ट, राइट? बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर. सो after the company got into liquidation, the whole period after liquidation would be excluded for calculating the period of holding. ठीक है, तो अगर उसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म हो रहे हो तो वैसा नहीं होगा. Property became the property of an assessee by virtue of section 49(1). What is 49(1)? Again we'll go to the 49(1), but that is again all those cases which are related to 47. Gift, amalgamation, demerger, all these points are given in 49(1). इसके बाद हम वही पढ़ेंगे. So again, period for which the asset was held by the previous owner shall be included. सेम चीज अमालगमेशन में होगी. अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेटेड कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर किया या होल्डिंग सब्सिडरी है ना, तो हमने उसको ट्रांसफर नहीं माना. अब वो सब्सिडरी जब उस एसेट को ट्रांसफर करेगी, आगे बेचेगी, तो पूरी कंपनी, पुराना होल्डिंग कंपनी ने जितने समय तक खरीद के रखा था और आपके पास जितने समय था, उस दोनों को मिलाकर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा. इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट. अगेन period from date of conversion will be considered. Share in the Indian company. Just a second. चलो. Shares in the Indian company become the property. Again, the period ओरिजिनल वाला भी इंक्लूड होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए कंपनी में आपके पास शेयर्स थे, अब आपको उसके बदले में अमालगमेशन के बाद ए बी कंपनी में शेयर्स मिल गए. अब जब आप इन शेयर्स को सेल करोगे तो आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग में पूरा पुराना पीरियड भी इंक्लूड किया जाएगा. शेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ राइट, अगर राइट्स इशू मिले हैं, जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा. Where the right of any share is renounced in the favor of any other person. I hope you all know that what is right issue, what is right renouncement. So if you have renounced your right in favor of any other person, then the date of offer of such right shall be constitute. क्योंकि आपके पास शेयर आया ही नहीं तो डेट ऑफ अलॉटमेंट नहीं आएगा, डेट ऑफ ऑफर विल बी कंसिडर्ड. If the where any financial statement is allotted without any payment, that is bonus shares अगर आपको मिले हैं, again जिस दिन बोनस शेयर्स अलॉट हुए वो वाला दिन देखा जाएगा. रिजल्टिंग कंपनी, सेम डीमर्जर वाले केस में भी आपका अमालगमेशन जैसा ही होगा, पुराना पीरियड भी इंक्लूड किया जाएगा. कन्वर्जन हुआ है, अगेन ओल्ड पीरियड विल बी इंक्लूडेड. तो आपके पास डिबेंचर्स थे, फिर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए और फिर आपने इक्विटी शेयर्स को सेल किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरा माना जाएगा. अगेन रीजन सेम है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना गया है ना. इस वाले केस में बहुत सारे आपके 47 से मिलते जुलते केसेस हैं, इसलिए मैंने पहले 47 कवर किया, फिर हमने ये बात करी. स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और इज अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट. अगेन अलॉटमेंट, दैट इज ईसॉप की बात हो रही है. तो अगेन जिस दिन अलॉट हुआ वो वाले दिन से ही आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट किया जाएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग अंडर स्पेसिफिक केसेस. अब देखो, आप लोगों को कैपिटल गेन हेड जब भी हम पढ़ते हैं तब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है. मैं एक स्पेसिफिक आपका वो बना करके चलने की कोशिश कर रही हूँ, ऑर्डर बना के चलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें
लाइन से बैठती जाए, ठीक है, रादर देन हम सेक्शन वाइज चलें कि 45 पे 46 पे 47। आपके दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट्स बैठाना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट लीड्स टू इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होती है, वो बात करी। अब जो भी ट्रांसफर होता है वो या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो हमने बात करी पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। फिर हमने बात किया कि ट्रांसफर होगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा, एक बेसिक फॉर्मेट समझा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब कुछ, तो आपका गेन या लॉस निकल के आ जाता है। देन वी डिस्कस अबाउट द स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, कि भैया ठीक है इस हेड में टैक्सेबल होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो तो ठीक है, लेकिन कब, कौन से केसेस होंगे जब इस पर्टिकुलर सेक्शन में चार्जेबिलिटी आएगी। तो हमने 45 की बात करी कि इंश्योरेंस में ये होगा, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में ये होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोस फैक्टर्स। Then we moved that are there any transfers which are not regarded as transfer, मतलब जिसमें एक्चुअली तो असेट जा रही है हमारे पास से, लेकिन हम इनकम टैक्स में उसको ट्रांसफर नहीं मान रहे। तो हाँ, हमने वो बात करी। और जिन ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर नहीं ट्रीट किया जाता उनमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकाला जाएगा, हमने उस बारे में भी बात करी। तो यहाँ पर हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल गेन है वो हमने काफी हद तक क्या कर लिया है, अब कवर कर लिया है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, हमको ये पता है ट्रांसफर क्या होता है, हमको ये पता है कैपिटल एसेट क्या होता है, हमको ये पता है कि कौन से ईयर में चार्जेबिलिटी आएगी, और हमको ये भी पता है कि कैपिटल एसेट गेन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंप्यूटेशन का फॉर्मेट, ठीक है। मतलब हम एक एक करके हमारे कंप्यूटेशन के फॉर्मेट के जो टर्म्स हैं जो हमने बात करी थी ऊपर, उनके ऊपर चर्चा करना या उनके ऊपर हमारा डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आ जाते हैं आगे, लेट अस मूव ऑन टू द फॉर्मेट, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सेल्स कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, cost of acquisition, cost of improvement, and after that you have your exemptions under 54. So let us discuss first about sales consideration. Normally whenever you are transferring the asset and you are getting anything in return, obviously आपने कोई asset बेची तो आपको जो भी पैसा मिला वो आपका sales consideration हो गया। Then next is your transfer expenses. Transfer expenses are those expenses which are undertaken for the transfer of that particular asset. That means suppose आपको कोई लैंड बेचनी थी, आपने कोई ब्रोकर अपॉइंट किया, उस ब्रोकर का जितना भी फीस रहेगी वो आपका क्या हो गया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफर को अफेक्ट करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, those expenses are known as transfer expenses. So you can deduct any kind of transfer expenses which you have incurred for that particular transaction, but you have to keep in mind in case of share securities or anything, STT or CTT is not allowed to be deducted as a ट्रांसफर एक्सपेंस, ओके। एसटीटी सीटीटी का डिडक्शन कैपिटल गेन में से, कैपिटल आपके कंसिडरेशन में से आपको नहीं मिलेगा एज अ ट्रांसफर एक्सपेंस, सो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कॉस्ट अक्वायर करने की, है ना, मतलब हमने जितने में वो खरीदा वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट यू आर डूइंग ऑन दैट एसेट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट। उस एसेट को खरीदने के बाद उसमें जो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ है उसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहा जाएगा। तो वो भी आप क्या करते हो, डिडक्ट करते हो। If there is any indexation, we all know indexation है ना, long term capital asset है तो indexation दिया जाएगा, that has to be provided on your cost of improvement and on your cost of acquisition, and then you calculate your capital gain. So what is your cost of inflation index for this particular year? You need to know that we are studying for assessment year 23-24, that is 22-23 previous year. So your cost inflation index notified has been 331, okay. So when you're solving question, keep this in mind that multiply करते समय 331 से multiply करेंगे, इस particular year का cost of inflation index 331 है। चलिए आगे चलते हैं, moving on to ascertainment of cost of acquisition in specified circumstances। तो अब हम किसकी बात करेंगे, हम cost of acquisition और cost of improvement को पढ़ेंगे कि कब cost of acquisition कैसे निकलेगी, कब cost of improvement कैसे निकलेगा। देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैं आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सिंपल लॉजिक से समझाने की कोशिश करूं तो कैपिटल गेन में कुछ मुश्किल ही नहीं है, है ना, जितने में खरीदा जितने में बेचा डिफरेंस निकाल लो, गेन आ गया।
बहुत बार ऐसा होता है कि जो असेट हमने खरीदी नहीं वो हम बेच रहे हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि जो असेट हमने खरीदी वो बेची हमने नहीं। जैसे मेरे पास कोई असेट इनहेरिटेंस से आई तो मैंने खरीदी कहाँ, लेकिन बेची तो मैंने, तो ये केस अलग हो गया। फिर उल्टा हो सकता है, मैंने कोई असेट खरीदी जो इनहेरिटेंस से या गिफ्ट से किसी दूसरे के पास गई, मैंने बेची नहीं क्योंकि उसको तो ट्रांसफर माना ही नहीं सरकार ने, अब वो आगे वाला बेचेगा। सो इन सब केसेस में क्या हो जाता है, यू डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और योर सेल्स कंसिडरेशन। इन दीज केसेस you need to have some specific rules to understand how do you calculate the cost of acquisition. So 49 section जो है हमारा, that is cost of acquisition in specified circumstances। देखिए क्या बोला है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इन सारे ही केसेस में, अगेन ये सारे वही केसेस हैं जो सेक्शन 47 में हमने पढ़े, जिनको ट्रांसफर नहीं माना गया। तो मैं कोई ऐसी असेट बेच रही हूं जो कि मेरे पास ऐसे तरीके से आई है जिस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ही नहीं माना गया, तो जो ओरिजिनल ओनर के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। सो सक्सेशन, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, विल, रिवोकेबल ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन लिक्विडेशन, ट्रांसफर बाय होल्डिंग कंपनी टू होली ओन सब्सिडरी, है ना, ये सब हमने पढ़ा। देखो 47 के केसेस है सारे, अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी, डीमर्जर में टू रिजल्टिंग कंपनी, ये सब जो सारे केसेस हैं, इन ऑल दीज केसेस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस नोट पे मैं बाद में आऊंगी, पहले हम एक बार ये सारा 49 का केस सुलझा लें, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। सो नाउ with with what we discussed that in these cases the cost of previous owner is considered to be the cost of acquisition। चलो यहाँ तो पहले यहाँ साथ साथ ही हम इसकी बात कर ही लेते हैं, है ना। ये नोट में क्या बोला है हमको, नोट में ये बोला गया है कि अब चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो पुराने ओनर की लेनी है ना, वो हम समझ गए। पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी हमने यही बात करी कि पुराना पीरियड भी इंक्लूड होगा, है ना। चलो उसी गिफ्ट वाली बात को ले लेते हैं कि पापा ने गिफ्ट में बेटे को लैंड दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये से फॉर एग्जांपल इन्होंने खरीदा था जब भी 2018 में, इन्होंने बेटे को दिया 2020 में, और बेटे ने ट्रांसफर कर दिया 2021 में, है ना। तो अब इधर से इधर पीरियड ऑफ होल्डिंग गिनना है कि इधर से पूरा गिनना है, तो ये तो हमने सीख लिया कि भैया पूरा गिनना है, प्रीवियस ओनर का भी इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी मानी जाएगी, पापा वाली, क्योंकि बेटे ने तो खरीदा ही नहीं है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सवाल ये हुआ कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो कौन से साल का लगेगा, जब से असेट बेटे के पास आई वो वाले साल का, या फिर जब से पापा के पास थी वो वाले साल का। अगर हम सेक्शन की प्लेन रीडिंग करते हैं, मतलब सेक्शन 48 दैट इज मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की, अगर हम प्लेन रीडिंग करते हैं तो उससे ये पढ़ करके समझ में आता है कि भैया जब से बेटे के पास आई, जो असेसी ट्रांसफर कर रहा है उस असेसी के पास जब से वो असेट आई, सिर्फ उतने ही टाइम का इंडेक्सेशन आपको मिल सकता है। However, there have been court cases in which the particular judge or the particular authority has decided कि नहीं भैया पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराना ले रहे हो, कॉस्ट पुरानी ले रहे हो, तो इस पूरे पीरियड का इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी बेटे को मिलना चाहिए। सो इन दिस केस यू कैन कंप्यूट बाय बोथ द केसेस, ठीक है। बेसिकली आप इंडेक्सेशन ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली असेसी का फायदा है, अगर आप ये वाला लगाते हो, जितना ज्यादा इंडेक्सेशन उतनी ज्यादा कॉस्ट, जितनी ज्यादा कॉस्ट उतना कम गेन, तो ये वाले में बेनिफिट है। अगर आप जो भी आप केस फॉलो कर रहे हो, द वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ which is applicable is Bombay High Court, that is Manjula Jesha, in which they have decided कि भैया अगर गिफ्टेड असेट है तो आपकी जो पुराने वाले की पीरियड ऑफ होल्डिंग है वहीं से ही आपका इंडेक्सेशन भी लगाया जाना चाहिए। तो अगर ये वाला केस आपका आता है तो आप दोनों में से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बस जो भी है यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर आंसर, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड। आगे चलते हैं, शेयर्स रिसीव्ड अंडर अमालगमेशन, मतलब अगर मेरे पास कोई शेयर है जो अमालगमेशन में आए, अगेन उनकी ओरिजिनल कॉस्ट ही मानी जाएगी। तो मैंने ए कंपनी में शेयर्स खरीदे थे, मान लो 60,000 रुपए में, इनके बदले मुझे बी कंपनी में शेयर्स मिल गए, अब मैं इन शेयर्स को सेल कर रही हूँ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही वाली मान ली जाएगी। हाँ
ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन, सेम चीज, ओरिजिनल कॉस्ट को ही इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। जो मैंने सपोज कोई डिबेंचर्स खरीदे थे, उनके बदले में मैंने इक्विटी शेयर्स मुझे कन्वर्जन में मिले, फिर मैं इक्विटी शेयर सेल कर रही हूँ, यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। स्वेट इक्विटी शेयर्स where the capital gain arises from transfer the shares, the cost of acquisition will be the value that has been taken for perquisite valuation। आप सब लोगों ने सैलरी हेड पढ़ा होगा। सपोज मेरे पास, मैं गूगल में जॉब करती हूँ, गूगल के कंपनी ने स्वेट इक्विटी इशू वो किया और मेरे पास उसके शेयर्स आ गए। तो सपोज उस दिन, जिस दिन वो शेयर्स अलॉट हुए, एक्सरसाइज हुआ, तो सपोज जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो सैलरी हेड के लिए कैलकुलेट होती है वो थी मान लो 450, और मैंने एक्चुअली वो शेयर्स मुझे कंपनी ने दिए हैं 50 रुपए में, तो ये परक्विजिट में टैक्सेबल हो चुका होगा, है ना, सैलरी हेड में। ये जो फार मार्केट वैल्यू है ये अभी मेरी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब मैं ये शेयर बेचूंगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 450, नॉट ₹50, क्योंकि 400 रुपए में ऑलरेडी टैक्स दे चुकी हूँ। सब कन्वर्जन का सेम है। डीमर्जर इज इंपॉर्टेंट। डीमर्जर में क्या होता है, कंपनी बट जाती है। तो मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स थे जो कि मैंने 50,000 में खरीदे थे सपोज, है ना। अब मेरे कुछ शेयर इधर चले गए, कुछ शेयर इधर चले गए, तो रिजल्टिंग कंपनी में कितनी वैल्यू मानी जाएगी और ओरिजिनल कंपनी में कितनी वैल्यू मानी जाएगी इस 50,000 में से, तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द नेट वर्थ। ठीक है, इट विल बी प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स ट्रांसफर्ड अपॉन नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी बिफोर द डीमर्जर। तो सपोज इस कंपनी की नेट वर्थ थी मान लो 50 लाख, ठीक है, और टोटल जितनी भी असेट्स थी उनमें से 30 लाख रुपए की असेट्स इस कंपनी को ट्रांसफर हुई है। तो मेरे जो शेयर्स हैं वो भी इसी रेशो में बढ़ जाएंगे, 3/5 इधर और 2/5 पुरानी कंपनी में ही माना जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द cost of acquisition of demerged and resulting company. Cost of acquisition subject to tax under 56(2)(10). 56(2)(10) में अगर टैक्स लगा है, दैट इज गिफ्ट प्रोविजन में टैक्स लगा है, तो जो वैल्यू हमने वहां पर गिफ्ट के लिए कंसिडर करी है वो आगे चल करके हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो जो मैंने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट आपको पढ़ाया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी जो यहाँ पर उसकी सेल्स कंसिडरेशन मानी गई है। कन्वर्जन में भी हम बात कर चुके हैं, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो दीज आर द स्पेशल केसेस अंडर सेक्शन 49 फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मूविंग ऑन टू सेक्शन 55 which is the regular section of cost of acquisition, कि normally कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है। वो तो 49 के स्पेशल केसेस थे, है ना। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 55, दैट इज computation of cost of acquisition. Again there has been a table given to us in which they have very easily and very systematically given all the cost of acquisition at a glance. तो हम सीधे वहीं चलते हैं। रिविजन की बात है तो हम डायरेक्टली शॉर्ट में ही इन प्रोविजंस को समझ लेंगे। चलो, cost of acquisition, first case, goodwill of a business or profession, trademark, brand name, etc. If it is a self-generated goodwill, then the cost of acquisition would be nil. Okay, so no cost of acquisition will be awarded if the goodwill is self-generated. If it is acquired from previous owner, purchase price, any asset which you acquire from someone is very easy to calculate. Cost of acquisition will be the purchase price. However, in case of goodwill, capital asset in which respect of which depreciation has been obtained. Now, there was an amendment in the last year that you cannot claim depreciation on goodwill. So, people who were already claiming goodwill as an intangible asset in their block of asset and were claiming depreciation, if they will in future sell that particular asset, then for calculating the cost of acquisition, they will have to adjust the depreciation that they have already claimed. So, what they have said, purchase price as reduced by the total amount of depreciation obtained by the assessee. तो जितना depreciation लग चुका है उतने को हटाना पड़ेगा, नहीं तो उतने अमाउंट का एक तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, डबल बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। आपने डेप्रिसिएशन भी ले लिया और आप उसको अपने कैपिटल गेन में भी एज अ डिडक्शन ले लोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट मानकर, तो वो एक तरीके से आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड. Then next, goodwill, if it became the property of the assessee by way of distribution or gift, liquidation, ये वाले जो सारे cases थे हमारे 49(1) वाले, उनके जैसे वाले जो सारे cases हैं, then the purchase price of the previous owner will be taken the purchase price. In this case, lastly,
However, in case of a capital asset being goodwill of a business or profession which was acquired by the previous owner by purchase and in respect of which depreciation has been obtained by the assessee, purchase price of previous owner as reduced by the depreciation. वही बात हो गई, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है. देखो, डेप्रिसिएशन भी अगर ले चुके हो तो उस अमाउंट का आपको फिर से डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, दैट इज बोनस शेयर्स. If you have received any shares as bonus, what is bonus issue? You get shares but you do not pay anything, so practically your cost of acquisition is zero. आपने खरीदने के लिए कुछ भी पे नहीं किया है. Any asset which you are receiving as a bonus share before 1st of April 2001, then you can claim fair market value as on 1st of April 2001 as your cost of acquisition. However, if the bonus shares are allotted on or after 1st of April 2001, then the cost of acquisition will be nil. बोनस शेयर्स अलॉटेड बिफोर 1st of February, इस वाले केस को मैं अभी के लिए रोक रही हूँ. ये पूरा केस हम एक साथ पढ़ेंगे. ये 2018 वाला क्या केस है, क्या कहानी है, वो एक साथ समझेंगे. नॉर्मल बोनस शेयर्स की बात समझ लो कि 1/2001 के पहले के हैं तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल. राइट शेयर्स सिमिलरली. नाउ, राइट शेयर्स में 3 अलग अलग बातें होती हैं. राइट शेयर्स जब भी इशू किए जाते हैं, या तो आप वो राइट्स खरीद लो, या तो आप उनको वेस्ट होने दो, जाने दो कि हमको नहीं चाहिए, या फिर आप उन राइट्स को किसी तीसरे व्यक्ति के फेवर में रिनाउंस भी कर सकते हो. इफ यू हैव परचेज्ड द राइट शेयर्स, देन इट बिकम्स लाइक अ नॉर्मल शेयर that you have paid some amount, you have purchased the share from the company, and now in future wherever you will be selling that share, cost of acquisition will be the amount paid to the company. That the amount that you have actually paid to the company will be the cost of acquisition. Next is your rights shares. Whatever the rights shares is, if that particular right is renounced. अब तुमने क्या करा, तुमको कंपनी ने बोला भैया हम तुमको राइट खरीदने को दे रहे हैं, तुम 50 का शेयर 30 में खरीद सकते हो. तुमने बोला कि हमको नहीं चाहिए, कंपनी ने बोला ठीक है, तो फिर क्या, मैंने बोला मैं किसी और को रिनाउंस करना चाह रहा हूँ. ठीक है, अब ये जो राइट है, मैंने शेयर नहीं बेचा है, मैंने शेयर तो लिया ही नहीं, मैंने राइट बेचा है. तो ये जो राइट है, ये मैंने किसी और को रिनाउंस कर दिया. ये रिनाउंसमेंट, again this is a transfer. Remember, transfer of rights is also a transfer to what हमने जब डेफिनेशन पढ़ी ट्रांसफर की. सो यहाँ पर क्योंकि हमने ट्रांसफर करा है राइट, शेयर नहीं, राइट, it is a transfer under the head capital gains and you will have to pay capital gain tax on this transfer as well. लेकिन क्योंकि ये राइट कंपनी से लेने के लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया था, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी जीरो. सेल्स में जितना पैसा मिला वो तो कंसिडरेशन माना जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी जीरो. ठीक है, राइट्स जो हमने खरीद लिए, ऑब्वियसली उसमें तो हमने जो पैसा दिया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा. अब ये जो राइट शेयर्स हैं जिसको मैंने रिनाउंस करे, वो जब इसको आगे चल करके बेचेगा तो जितना पैसा उसने मुझे दिया राइट खरीदने का, प्लस उसने जितना पैसा कंपनी को दिया, वो पूरा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा. सिंपल सा हिसाब लेते हैं. सपोज कोई शेयर था जो कि 40 रुपए का था, कंपनी मुझे 30 रुपए में दे रही थी. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये राइट मेरे फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया 5 रुपए में, तो मेरी ये 5 रुपए पूरी की पूरी इनकम हो गई. कौन से हेड में, कैपिटल गेन हेड में. इसके अगेंस्ट में कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्लेम नहीं कर सकती. ठीक है, अब ये राइट जिस दोस्त ने खरीदा, उस दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, 5 रुपीज जो उसने मुझे दिए प्लस 30 रुपीज जो वो कंपनी को देगा, तो 35 रुपीज विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब भी वो आगे चल करके इस शेयर को बेचेगा उस टाइम के लिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Any capital asset other than this point I'll discuss in last. Any capital asset which you have purchased before 1st of April, then actual cost of acquisition or fair market value as on 1/4/2001 will be treated as the cost of acquisition. Okay, अच्छा, अब चलो आ जाते हैं, हम बात करते हैं अब इस वाले पॉइंट की, that is long term capital assets being equity shares in a company on which STT is paid both at the time of purchase and transfer of the share or unit of equity oriented fund or business trust on which STT is paid at the transfer acquired before 1st of February 2018. अब देखो, पहले कहानी समझते हैं. 1 फरवरी 2018 को एक अमेंडमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो सारे शेयर्स हैं, ये इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड, ये जो 3 चीजें हमने बात करी, इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आप ट्रांसफर करते हो और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो मोर देन 1 लाख विल बी
टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, ये अमेंडमेंट आया, ये सेक्शन इंसर्ट हुआ, दैट इज 112A। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके 112A, एक सेक्शन इंसर्ट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके पहले ये जो गेन्स थे ये एग्जेम्प्ट हुआ करते थे। तो जो लोग जिन्होंने 1 फरवरी 2018 को के पहले वो शेयर खरीदा और बेचेंगे 1 फरवरी 2018 के बाद, उन लोगों के साथ दिक्कत ये हो गई कि खरीदा तो था तब वो टैक्स एग्जेम्प्ट था, जब बेच रहे हैं तो उसके ऊपर गेन लगेगा। तो जितने पीरियड वो एग्जेम्प्ट था, वो कह रहे थे कि हम उतने पीरियड का जो गेन है उस पर टैक्स नहीं देंगे, एग्जेम्पशन हटने के बाद के पीरियड पे हमारा टैक्स ले लो, लेकिन एग्जेम्पशन के पहले पे हम टैक्स नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे असेट्स जो कि 112A में टैक्सेबल हैं और 1 फरवरी 2018 के पहले अक्वायर हुए हैं और बाद में बिक रहे हैं, मतलब बेसिकली 1 फरवरी 2018 के बाद सेल हो रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का एक स्पेशल या एक अलग तरीका दिया है ताकि असेसी का नुकसान ना हो जाए। गवर्नमेंट का ये कहना है कि सपोज आपने वो खरीदा था 100 रुपए में 1 फरवरी 2018 को, उसकी वैल्यू हो गई 120 और अब आप उसको बेच रहे हो 180 में, तो टोटल आपको गेन तो 80 का हुआ, लेकिन ये पीरियड में ये 20 का गेन तो एग्जेम्प्ट था, तो इस पर आप टैक्स मत दो, आप सिर्फ इस 60 के गेन पर टैक्स दे दो। तो कैसे कैलकुलेट होगा देखें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट of acquisition and lower of fair market value and full value of consideration। और fair market value आपको कब की लेनी है, fair market value आपको लेनी है 1 फरवरी 2018 की। मतलब सपोज कोई शेयर था जो आपने खरीदा था 60 रुपए में, फेयर मार्केट वैल्यू हो चुकी थी से फॉर एग्जाम्पल उसकी 110 और एक्चुअली आपने उसको बेचा है 150 में, तो पहले आपको इन दोनों में से लोअर उठाना है। किन दोनों में से, फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन। सो दैट लोअर इज 110 एंड देन इस फिगर को उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर। तो आपने उठाया 110, 110 विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो गेन कैसे निकलेगा, 150 माइनस 110, 40 रुपए के गेन पर आपको टैक्स देना है इफ it fulfills the other conditions of 112A as well. Getting the point? So this is how you calculate cost of acquisition of different category of assets which you have purchased. Moving on to cost of improvement. Cost of improvement is very simple. Any asset which is goodwill, then the cost of improvement will be nil. If there is any other asset than goodwill, then cost of improvement will be all the costs incurred by the assessee or the previous owner of that particular asset on or after 1st of April 2001। 1 अप्रैल 2001 के पहले की जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, भले ही आपने इनकर करी हो, भले ही आपके प्रीवियस ओनर ने इनकर करी हो, उसको निल माना जाएगा। हमारा इंडेक्सेशन का जो एक बेस लिया है वो 2001 लिया गया है, तो उसके पहले के खर्चे को उन्होंने इंप्रूवमेंट से हटा दिया। सपोज कोई लैंड आपने खरीदी थी 1995 में, या सपोज आपके पापा ने खरीदी थी 1995 में, 2000 में उसमें उन्होंने ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया, फिर 2002 में उन्होंने वो लैंड आपको दे दी, 2004 में आपने उस पर फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया और 2008 में आपने उसको बेच दिया। तो जब भी आप गेन निकालोगे आप इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, हाँ, इसको कंसिडर नहीं करोगे और इसको कंसिडर करोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। गेटिंग द पॉइंट? सिंपल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कोई भी ऐसा खर्चा नहीं आता है जो कि किसी और हेड में डिडक्टेबल है। अगर आप उसको डिडक्ट कर सकते हो किसी और हेड में, तो यहाँ पर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आलतू फालतू खर्चे जोड़ जोड़ के कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बढ़ा बढ़ा करके उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि कॉस्ट ऑफ improvement में there will be no such expenditure that can be added which is allowed to be deducted under any specific different head. Okay, now so with this we complete our cost of acquisition and cost of improvement. Now we'll go on to section 50C that states a special case of sales consideration. अभी हम लोगों ने बात करी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर प्रीवियस ओनर का है तो ऐसे होगा, अगर ये है तो वैसे होगा। 50C में हमको उन्होंने एक स्पेसिफिक केस बताया है कि अगर हमारा ट्रांसफर जो है वो कोई उसका है, लैंड या बिल्डिंग या बोथ, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का है,
तो उसका सेल कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा वो हमको इसमें बताया गया है, दैट इज 50C में बताया गया है। ठीक है, if the stamp duty value is more than 110% of the consideration, this is a very simple section and we have already discussed this 43CA in PGBP. This is quite a lot similar than that, so इसीलिए we'll just go through the section. Whenever an assessee is transferring a land or building or both, और ये बार बार होता है ना, जब आप कैपिटल गेन की बात करते हो, शेयर्स और प्रॉपर्टी ये दो सबसे कॉमन एसेट्स है जो सेल होती है। आप किसी भी रिटर्न को उठा के देख लो, कैपिटल गेन के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि या तो उसमें प्रॉपर्टी सेल हुई होगी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हुई होगी, या फिर शेयर्स का सेल दिखेगा। फिलहाल की सिचुएशन में बता रही हूँ मैं आपको। तो अब अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है तो आपको आपके सेल वैल्यू के साथ साथ उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे भी फोकस करना है। अगर आपने उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में सेल किया तो आपके ऊपर डीम्ड सेल्स कंसिडरेशन का प्रोविजन लग जाएगा। आई होप 50C तो आप सब लोग को कंटेस्ट होगा, वैसे ही बहुत बार हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है क्लास में, बहुत बार इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने करके देखे हैं। इट इज अ क्वाइट 50C के प्रोविजंस 43CA में हमने पढ़े हैं, देन हम लोगों ने ऑलरेडी इसको 56 to 10 में हम पढ़ते हैं। तो ये काफी हद तक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी यूज में आता है ना। तो चलो बात कर लेते हैं क्या बोला है। इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% of consideration, stamp duty value will be considered. However, if the date of agreement is different than the date of consideration, same वैसा ही जैसा हमने पीजीबीपी में पढ़ा, अगर अग्रीमेंट डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है तो शर्त यह है कि अग्रीमेंट डेट को या उसके पहले कंसिडरेशन का कुछ पार्ट ट्रांसफर हुआ है। इफ देयर इज and then transfer should be through approved modes, that is account paid check, account paid draft, ECS or any other electronic mode, then the stamp duty value as on the date of agreement will be considered. Otherwise, stamp duty value as on the date of transfer will be considered. Lastly, if the if the particular assessee is not satisfied with the value determined by the assessing officer, then the value determined by the valuation officer, you can basically appeal to the valuation officer. If the valuation officer has calculated a value less than the assessing officer, then that will be considered, otherwise it will not be considered. 50C में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फिक्स करो, है ना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ट्रांसफर डेट की लेनी है, अग्रीमेंट डेट की लेनी है, असेसिंग ऑफिसर की लेनी है, वैल्यूएशन ऑफिसर की लेनी है। अगर क्वेश्चन में तीनों चारों इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स विच एसडीवी इज रेलेवेंट। ओके, once you get to know which SDV is relevant, then you have to check कि वो 10% के कंसिडरेशन में आ रही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो, let us take a case where for transfer of building actual consideration is 100 lakhs, stamp duty value on the date of agreement is 109 and stamp duty value on the date of transfer is 112। अब पहले ये पता करो कि 10% कंपेयर किससे करना है, इससे करना है कि इससे करना है। वो डिपेंड करेगा कि अग्रीमेंट के कंडीशंस क्या है, अग्रीमेंट की डेट पे या उससे पहले अगर कुछ भी कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो दिया गया था सामने वाले को, वो भी अकाउंट पे चेक वगैरह उन सब मोड्स के द्वारा, तो आप अग्रीमेंट डेट की लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। तो क्या बोला है, देखो, इफ एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड बाय प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, है ना, प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया है, अग्रीमेंट डेट के पहले दिया है अगर, तो फिर 109 को पकड़ेंगे। अब 100 का आपको 10% देखना है, दैट इज 110। क्योंकि ये 10% के अंदर आ रहा है तो आपका जो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन है उसी को सेल्स कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे, डीम्ड 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बात समझ। अगर ये नहीं होता तो आप 112 को लेते, 112 110 से ज्यादा है तो 112 को सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा, 50C will be applicable, deemed sales consideration will be applicable. So these are the provisions to be kept in mind for section 50C. Similar cases for 50CA, that is if the shares are unquoted, then you have to calculate the fair market value, और अगर fair market value से नीचे पे सेल हो रहा है तो fair market value पे ही उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। एनी अदर कैपिटल एसेट जिसका सेल्स कंसिडरेशन नहीं निकाला जा रहा है, fair market value will be deemed to be the sales consideration. These are the provisions that have been prescribed under section 50C. ठीक है, अब सुने, अब हम लोगों ने हमारे जो जेनेरिक केसेस हैं वो हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कैपिटल गेन के जेनेरिक केसेस मतलब कि अगर एसेट प्रीवियस ओनर की थी और हमारे पास आई तो क्या होगा, अगर एसेट अमलगमेशन में थी तो क्या होगा, अगर एसेट ये है तो क्या होगा, अगर एसेट डीमर्जर में है तो क्या होगा, ये सारी हमने बात करी।
नाउ यहाँ पर ये जो सारे सेक्शंस थे ये हमारे जनरल प्रोविजंस के बारे में थे कि नॉर्मली जो भी कैपिटल असेट हो, ठीक है, फिर वो लैंड हो सकती है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो आपका ज्वेलरी हो सकती है, कोई सी भी कैपिटल असेट हो, अगर ये वाले सारे कंडीशंस में कुछ आता है जैसे इनहेरिटेंस, प्रीवियस ओनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Now I have selected all the sections of capital gain which are talking about specific category of capital asset. बात समझ आ रही है? जो कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कैपिटल असेट के बारे में बात करते हैं, तो उन सारे स्पेशल केसेस को, उन सारे स्पेशल असेट्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, जिनका कैलकुलेशन का तरीका, जिसका कैलकुलेशन का तरीका हमारे रेगुलर कैलकुलेशन के तरीके से अलग है, जिसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल्स कंसिडरेशन के जो रूल्स हैं वो उन्होंने उन्हीं असेट्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करे हैं जो किसी और जगह पर अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से केसेस लेंगे, डेप्रीशिएबल असेट का टैक्सेशन समझेंगे, देन हम समझेंगे स्लम सेल का टैक्सेशन कैसे होता है, देन हम लिक्विडेशन की बात करेंगे और हम बाय बैक की बात करेंगे. ये 4 केसेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए डेप्रीशिएबल असेट आ जाते हैं. डेप्रीशिएबल एसेट क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है. एक बहुत इजी सा फ्लो चार्ट हम लोगों को दिया हुआ है जिससे हमारे लिए वो समझना बहुत आसान हो जाता है. हम सब पीजीबीपी पढ़ चुके हैं. डेप्रीसिएबल एसेट्स जो होती हैं वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के तौर पर कैलकुलेट करी जाती है. तो हमारे पास इंडिविजुअल एसेट की सेल पे कोई प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन नहीं होता. जब पूरा का पूरा ब्लॉक ही बुक से हट जाए या फिजिकली पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाए, तभी इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल गेन या लॉस अराइज होगा. अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे. एक असेट के सेल होने पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट इनकम टैक्स में नहीं होता, अकाउंट्स जैसा यहाँ पर नहीं होता है. ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला सवाल बहुत आसान. अगर हमारा आंसर नेगेटिव में चला जा रहा है, मतलब हमारे ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू थी 10 lakhs, हमने कोई नई असेट खरीदी 2 lakhs की, and we sold some assets out of the block or the full block whatever for 14 lakhs. ठीक है, our answer is minus 2 lakhs. that is हमारे जितनी ब्लॉक की वैल्यू थी उससे ज्यादा का हमको सेल्स कंसिडरेशन रिसीव हुआ. दिस 2 lakh इज माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, तो अगर आंसर नेगेटिव में चला गया, दैट इज सेल्स कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, बिना सोचे बिना समझे सीधे इसको क्या बोलो, एसटीसीजी. ठीक है, अब अगर उल्टा होता है, मतलब कि ये इससे कम नहीं है, सेल्स कंसिडरेशन इज लेस देन द ब्लॉक वैल्यू, 10 lakhs 2 lakhs और कुछ हमने बेचा जो कि बिका है हमारा से फॉर एग्जांपल 8 lakhs में, सो 12 minus 8, 4 lakhs हमारे पास वैल्यू है. अब सवाल ये है कि इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा या इसको एसटीसीएल माना जाएगा. तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास एक्चुअली ब्लॉक बचा है कि हमने पूरा का पूरा ब्लॉक सेल कर दिया. अगर हमारे पास फिजिकली ब्लॉक बाकी है, मैंने सारा ब्लॉक नहीं बेचा, मैंने ब्लॉक की कुछ असेट्स बेची, तो बचे हुए वैल्यू पर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन. अगर मैंने पूरा ब्लॉक ही बेच दिया, जितनी भी असेट्स थी सारी बेच दी 8 लाख में, तो फिर इसको क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. सिंपल. ठीक है, सो ये हमको यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. आगे चले तो आता है स्लम सेल. अगेन स्लम सेल भी लगता बहुत बड़ा सारा है, यहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट भी है स्लम सेल में. यहाँ पर उन्होंने वर्ड ट्रांसफर ऐड कर दिया है स्लम सेल की डेफिनेशन में, बस उससे उसका स्कोप और ब्रॉड हो गया और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं है. मोड ऑफ कंप्यूटेशन इज सेम, स्लम सेल का मोड ऑफ कंप्यूटेशन इज सेम. सो आ जाते हैं हम हमारे फॉर्मेट पर. इसका कंप्यूटेशन का तरीका पूरा अलग है. सबसे पहले देखना है सेल्स कंसिडरेशन. दिस हैज बीन अमेंडेड इन द लास्ट ईयर. सो full value of consideration will be fair market value of the capital asset on the date of transfer. That is, both the fair market values would be given to you. That whichever is higher has to be selected. इंटर सिलेबस में आपको एफएमवी कैलकुलेट करने का प्रोसीजर नहीं है, तो क्वेश्चन में एफएमवी गिवन होंगी. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स ट्रांसफर एंड एफएमवी ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब आपने जो असेट्स दी
उनकी फेयर मार्केट वैल्यू और बदले में आपको जो एसेट्स मिली उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसे कंसिडरेशन माना जाएगा और माइनस किया जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नेट वर्थ. नाउ व्हाट इज स्लम सेल? स्लम सेल इज बेसिकली व्हेन यू आर सेलिंग योर होल अंडरटेकिंग and no individual sales consideration is attached to each asset. आपने पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी. अब उसमें अगर 10 अलग अलग असेट्स हैं तो आपने ये डिटरमाइन नहीं किया है कि हर असेट की सेल कंसिडरेशन कितना है, आपने पूरे अंडरटेकिंग का कंसिडरेशन डिटरमाइन किया है. तो आपके केस में आपका जो ट्रांजैक्शन होगा उसे स्लम सेल कहा जाएगा और जो कंसिडरेशन है वो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस cost of acquisition would be net worth. Okay, net worth of that full undertaking. उस undertaking का जो net worth होगा वो आपकी cost of acquisition माना जाएगा. अब भाई अगला सवाल, worth कैसे कैलकुलेट होगा? तो फॉर्मूला तो वही है, asset minus liability जो अकाउंट्स में होता है net worth का. बस वैल्यूएशन समझना है इनकम टैक्स के हिसाब से. assets जो डेप्रिशिएबल है उनकी इनकम टैक्स के हिसाब से WDV को कंसिडर किया जाएगा. सेल्फ जनरेटेड गुडविल नील. अगर कोई एसेट है जिसमें आपको 35 AD का डिडक्शन मिला है नील, और इसके अलावा जो भी एसेट्स होती हैं डेटर स्टॉक एक्सेट्रा, इनका आपका जो बुक वैल्यू है उसी को एसेट की वैल्यू माना जाएगा. ठीक है. लाइबिलिटीज नॉर्मल जो हमारी लाइबिलिटीज बुक्स में आ रही हैं उनकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे. तो ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं, हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बाद एक इलस्ट्रेशन है. आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व करे ही होंगे बिकॉज एज वी आर ऑलरेडी इन द रिविजन स्टेज राइट नाउ. बट देन टू आई वुड सजेस्ट कि एक बार फिर से हम सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखें. कहीं पर भी आपको इश्यूज आते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस. दीज आर द प्रोविजंस ऑफ स्लम सेल. आगे चलते हैं. आगे हम बात करेंगे 46 दैट इज लिक्विडेशन में क्या होता है और फिर 46A दैट इज बाय बैक में क्या होता है. तो ऊपर चलते हैं. अगेन इनका कंप्यूटेशन का तरीका नॉर्मल तरीके से थोड़ा अलग है, इसलिए हमने इसे उस टाइम पर डिस्कस ना करते हुए अभी के लिए छोड़ दिया था. Now, Section 46 talks about capital gain whenever a company distributes asset in liquidation. Suppose you had purchased some shares in a company and now the company is liquidating. Okay. In respect of your shares, आपके shares के बदले में कंपनी ने आपको क्या दिया है? कंपनी ने आपको असेट दे दी, कैपिटल असेट दे दी. इस सिचुएशन में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? तो इसमें दिक्कत क्या है या इसको स्पेशल केस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों तरीकों से ट्रांसफर हो रहा है. मतलब हमारी तरफ से भी ट्रांसफर है और कंपनी की तरफ से भी ट्रांसफर है. कैसे? मेरे शेयर्स में एक तरीके से कंपनी को वापस कर रही हूँ तो वो ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर कंपनी असेट मुझे दे रही है तो वो एक ट्रांसफर हुआ. तो ट्रांसफर दोनों के केस में अट्रैक्ट हो रहा है, सेम ट्रांजेक्शन दोनों की तरफ से ट्रांसफर है. तो क्या दोनों से टैक्स लेंगे? नहीं. व्हाट हैज द गवर्नमेंट डिसाइडेड? दैट this will be treated as a transfer in the hands of shareholders and not in the hands of कंपनी. तो पहली चीज तो ये समझें, अगर लिक्विडेशन में कोई कंपनी अपनी असेट्स को ट्रांसफर कर रही है शेयर को उनके अमाउंट के बदले में, तो देन इट इज नॉट a transfer in the hands of company, so no tax liability arises in the hands of company, in the hands of shareholders. Now शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है वो किसके बदले में मिल रहा है? जितनी कैपिटल उसने लगाई एक तो उसके बदले में, है ना, जितनी कैपिटल उसने लगाई उसके बदले में, प्लस जिस दिन कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस दिन जितना अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है कंपनी के पास वो भी अल्टीमेटली किसका होगा? शेयर होल्डर का ही होगा. तो सपोज आप उस कंपनी के 1/10 शेयर होल्डर थे, है ना. कंपनी की टोटल कैपिटल थी मान लो 10 लाख, और जिस दिन कंपनी ने मतलब आपको असेट दी उस दिन कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स थे 1.5 लाख, सॉरी 15 लाख. तो 1.5 लाख इसमें से आपका इंटाइटलमेंट था कि भैया इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए था, मैंने इतनी की तो कैपिटल ही लगाई है और इतना तो कंपनी का रिजर्व्स है, जो मेरे हक का पैसा है. इसको छोड़कर जो एक्सेस आपको मिलेगा वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन. आई बात समझ? तो ये जो 5 लाख में से आपका शेयर है वो हो गया आपके हाथ में डीम्ड डिविडेंड,
रिजर्व्स हैं, डिविडेंड माना जाएगा, और बाकी आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बैलेंस विल बी द कैपिटल गेन। तो देखिए क्या बोला है, मनी रिसीव्ड प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उस आपको उन शेयर्स के बदले में जो भी मिला है, पैसा मिला है, असेट्स मिली है, दोनों थोड़ा थोड़ा मिला है, सब आपने ऐड कर लिया, लेस डीम्ड डिविडेंड। वही डीम्ड डिविडेंड मतलब क्या, शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, लिक्विडेशन के समय जो शेयर्स था रिजर्व्स का आपका वो हट गया, ये हो गया आपका कंसिडरेशन। मतलब ये पैसा आपको क्यों मिला है, ये पैसा आपको मिला है शेयर्स के लिए, है ना। और आपने जितना भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, वो जो डीम डिविडेंड था वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। पहले डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता था, बट अब काफी टाइम हो गया खैर उसको भी, तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तब आपने डिविडेंड टैक्सेबल ही पढ़ा होगा। तो ये दोनों ही चीजें अब एक तरीके से क्या हो गया, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गई। शेयर के बदले जो मिला वो कैपिटल गेन में, जो रिजर्व्स का हिस्सा मिला वो डीम्ड डिविडेंड जैसे आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा कौन सा सेक्शन हमने डिस्कस किया, लिक्विडेशन के समय पर अगर कंपनी आपको असेट देती है तो क्या होगा। Last case of special transactions, this is like almost the end of chapter, so we'll now talk about 46A, that is buyback. Buyback में एक buyback distribution tax लगता है, सिंपल से समझ लो, जहां पर बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया वहां शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट, और जहां पर बीडीटी नहीं लगा वहां शेयर होल्डर्स के हाथ में 46A में टैक्सेबल। सो व्हाट इज बायबैक, व्हेनेवर द कंपनी, यू नो आई गेस आप सब लोग ने अकाउंट्स में पढ़ा है, व्हेनेवर द कंपनी परचेजेस द शेयर्स बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर तो शेयर दे रहा है ना, तो मेरे लिए तो ट्रांसफर है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट कुछ कुछ केसेस में कंपनी से ही टैक्स ले लेता है। कंपनी को बोलता है कि भैया बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में तुमने जितनी भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी उसके ऊपर हमको टैक्स दे दो। तो मतलब सपोज मैंने कोई शेयर कंपनी से खरीदा था 10 रुपए में, और कंपनी ने उसको बाय बैक किया, और कंपनी ने उसको फिर से मुझसे खरीद लिया, कंपनी ने मुझे इशू किया 10 रुपए में, और कंपनी ने मुझसे जब खरीदा तो मुझसे 60 रुपए में खरीदा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए कंपनी ने दिए मुझे, ये एक तरीके से मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया, बराबर। और कंपनी ने ये जो 50 रुपए दिए होंगे, ये कहाँ से दिए होंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स में से दिए होंगे। तो सरकार क्या बोलती है कि इस प्रॉफिट पर कंपनी खुद ही क्या दे दे, बाय बैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दे, ठीक है। अगर कंपनी इन प्रॉफिट्स पे टैक्स दे चुकी है, ये शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और अगर कंपनी नहीं दे रही है, मतलब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, तो फिर ये शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल। तो हमें क्या समझना है, कब बीडीटी लगेगा, कब बीडीटी नहीं लगेगा, सिंपल। देखें, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी सब्जेक्ट टू एडिशनल इनकम टैक्स, दैट इज बीडीटी, तो यहां पर क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। Buyback of shares by a company other than domestic company, not subject to tax in the hands of company. Buyback of securities other than shares by any company, not subject to tax. तो इन केसेस में टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आ गई, शेयर होल्डर के हाथ में आ गई। मतलब इन शॉर्ट, अगर डोमेस्टिक कंपनी है और शेयर्स का बायबैक हुआ है तो बीडीटी लगेगा, अदरवाइज बीडीटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। इन एनी अदर केस, शेयर्स हैं लेकिन कंपनी डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी है या कोई भी कंपनी है बट जो सिक्योरिटी है वो शेयर्स नहीं है, तो बीडीटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये जो बीडीटी का रेट है ये कैसे निकलता है, तो दैट इज 20% टैक्स प्लस 12% ऑफ 20% सरचार्ज, और फिर जो आता है उसका 4% सेस, that comes to your effective rate of 23.296। आई होप आपको पता होगा ये कैलकुलेट कैसे होता है ना, 20 का 12%, फिर जो आएगा उसका 4% जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द बीडीटी रेट। तो यहाँ पर हमारा 46A, कब हमको 46A में टैक्स देना है और कब हमको 46A में टैक्स नहीं देना है, वो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम एक और सेक्शन पर, 51, that is now the completion of our computation part. Okay, 51 will now complete our computation part. उसके बाद हमारा सिर्फ exemption
और हमारा टैक्स रेट्स बचता है 51 में। हमारा कंप्यूटेशन का सारा हिसाब खत्म। 51 छोटा सा ही सेक्शन है। क्या है 51? कि भाई तुमने ये सारी बातें तो कर ली। नाउ if there is some kind of advance that you have already received for a particular transaction, advance money received मतलब क्या? कि सपोज कोई असेट आप बेचना चाहते थे, ठीक है। अब वो असेट आप बेचना चाहते थे और आपने सामने वाले से एडवांस ले लिया कि हमें आगे चल करके आपको असेट बेच दूंगा। थोड़े समय बाद आप दोनों का आपस में कुछ अग्रीमेंट में प्रॉब्लम हुई और आपने वो एडवांस फोरफिट कर लिया, ठीक है। असेट तो आपके पास ही है, आपने एडवांस भी रख लिया। अब 4 साल बाद आप उस असेट को फिर से बेचने निकले, आपने उस असेट का सौदा कर दिया और बेच दिया। नाउ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस एडवांस रिसीव्ड? So earlier the provisions were different and now they have been changed. Earlier the rule used to say that reduce this advance from the cost of acquisition. That used to lead to a loss of indexation benefit to the assessees. Therefore, there was a change that now onwards you are supposed to take this advance as an income under the head other sources, and capital gain will be computed as it is. There will be no change in the format of capital gain computation. तो क्या बोला है देखो, अगर एडवांस रिसीव फोरफिट हुआ है 1/4/2014 के पहले, अमेंडमेंट आने से पहले, अमेंडमेंट आया था 15-16 में, ठीक है, तो 14 के पहले, तो फिर जब आप असेट एक्चुअली बेचोगे, ठीक है, जब आप असेट एक्चुअली बेचोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा। ये आपको अभी भी ध्यान रखना है ना। मतलब अगर आप आज एग्जाम लिख रहे हो और क्वेश्चन में आपको बोला है एडवांस वाज फोरफिटेड ऑन 1 फरवरी 2012, तो ये वाला रूल लगेगा। मतलब जब वो असेट सेल होगी 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, कभी भी, दैट पर्टिकुलर टाइम यू विल बी रिड्यूसिंग दैट for advance from the cost of acquisition. And if the advance is forfeited after, on or after 1st of April 2014, then it is taxable under the head 56(2)(10). and जिस साल आपने forfeit कर दिया उसी साल आप टैक्स इसके ऊपर पे कर दोगे। कैपिटल गेन जिस साल कैलकुलेट होगा उस साल नॉर्मल कैलकुलेट होगा, इस एडवांस का उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। Getting the point? So with this, we have completed the computational part of capital gain. Now we are moving forward to the exemptions of 54 and the tax rates, that is 111A, 112 and 112A, that completes our capital gain head. So moving on to the last part of our capital gain head, that is the exemptions and tax rates. So first, there are two very small exemptions under section 10, that is 1037. If individual or HF owns an urban agricultural land for agricultural purposes for a period of 2 years immediately preceding the date of transfer, and if it is compulsory acquired, then it will not be taxable. 1043, amount received as a loan under reverse mortgage, this we already discussed, will not be taxable under section 10. Now moving on to exemptions. Exemptions under 54 to 54F. अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम हुई है और आपने उस इनकम को कहीं इन्वेस्ट कर दिया प्रिस्क्राइब्ड मोड्स में, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा या हो भी सकता है जीरो हो जाए। सो बिफोर डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन टैक्स, जितना भी आपका कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ है उसमें से आप एग्जेम्पशंस को माइनस करते हो और फिर जो बचता है उस पर क्या लगाते हो? टैक्स, ठीक है। तो ये एग्जेम्पशंस हम पढ़ने वाले हैं। द एग्जेम्पशंस व्हिच आर इन आवर सिलेबस आर 54, 54B, 54D, EC एंड F। कोई से भी कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन के सेक्शन के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो कि आपको ध्यान रखने हैं। हर सेक्शन में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये सेक्शन कब एक्टिवेट होगा, मतलब विच असेट शुड बी ट्रांसफर्ड सो दैट दिस सेक्शन कैन बी क्लेम, व्हाट इज द टाइम पीरियड, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इन सेक्शंस में। इफ देयर इज एनी अमाउंट और लिमिट, if there is any limit of exemption, and what is to be invested, okay, gain या फिर consideration, आपको क्या इन्वेस्ट करना है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमें समझना है हर एग्जामिशन में। क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि ही परचेज्ड न्यू हाउस प्रॉपर्टी, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, यही सारी प्रॉब्लम्स होती है।
सेक्शन तो हम लोग याद कर लोगे, 54 से 54F में देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ ये बोला है कि ऐसा किया तो एग्जाम्शन मिलेगा, ऐसा किया तो एग्जाम्शन मिलेगा। कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। 54 देखो, एक सेक्शन पढ़ के बताऊंगी, सारे सेक्शन समझने में आसानी होगी। असेट जो ट्रांसफर हुई वो कौन सी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस। तो ये ध्यान रखो, क्वेश्चन में अगर बोला है कि सोल्ड अ लैंड और सब कुछ दिया है, एंड ही परचेज द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो 54 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने की होती है। रेसिडेंशियल हाउस, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी वो लोग कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि परचेज अनदर हाउस, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। व्हाट इज द क्वालिफाइंग असेट, you have purchased one residential house or two residential houses in India at the option of assessee where the capital gain does not exceed 2 crore। अगर 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो, अदरवाइज एक ही घर खरीद सकते हो। टाइम लिमिट, परचेज विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस और the capital gain whichever is lower will be exempt। okay, so these points are to be kept in mind। तो पूरा का पूरा गेन अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो पूरा का पूरा गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो these point is to be kept in mind। moving on to 54B, इंडिविजुअल एचएफ, लैंड शुड बी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल पे तो लगता ही नहीं है, तो एग्जेम्पशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो कि 2 साल से एग्रीकल्चरल यूज के लिए यूज हो रहा है ना। परचेज करना है आपको, क्या करना है, नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है। जो नया लैंड है वो अर्बन भी हो सकता है और रूरल भी हो सकता है। अगेन यहाँ पर भी कैपिटल गेन है, तो अगर आपने पूरा गेन इन्वेस्ट कर दिया तो पूरा का पूरा गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज जितना इन्वेस्ट किया है उतना एग्जेम्प्ट होगा। 54D, any assessee, now this is important, the most common questions asked in exams are 54, 54EC and 54F। okay, तो इनके अंदर भी डिफरेंस बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। लैंड बिल्डिंग, ऐसी कोई लैंड बिल्डिंग जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट थी, पिछले 2 साल से बिजनेस में यूज में आ रही थी, और ट्रांसफर जो हो गया है वो कंपलसरी एक्विजिशन से हो गया, आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का ट्रांसफर हो गया। लैंड और बिल्डिंग, क्या करना है आपको, नई लैंड बिल्डिंग खरीदनी है, परचेज या कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, कैपिटल गेन और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक है, नेक्स्ट इज 54EC। 54EC इज एप्लीकेबल टू assessees who are not eligible for 54 or who do not want to claim under 54, or you can say under 54F। suppose you have transferred your house or your building but you do not want to purchase a new house, this is quite relevant for non residents जो अपनी प्रॉपर्टी इंडिया में बेचना चाह रहे लेकिन नई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाह रहे। ऐसे असेसीज के लिए उन्होंने 54EC बेस्ट ऑप्शन है। क्या बोला है देखो, पहली चीज तो एनी असेसी, तो कंपनी वंपनी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। 54 में कंपनी अलाउड नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर बोला है ए एंड बी फर्म या ए एंड बी कंपनी हैज सोल्ड अ लैंड और ये वो वगैरह वगैरह, तो टैक्स तो निकाल लोगे, लेकिन 54 का एग्जेम्पशन नहीं देना है ना, वहां पर 54EC लगेगा। लैंड बिल्डिंग या बोथ हैज बीन ट्रांसफर्ड and you have purchased bonds of government that are RECL or NHIA bonds which are mostly redeemable after 5 years, and purchase should be within 6 months of transfer, then you can claim an exemption under section 54EC, maximum up to rupees 50 lakhs। ठीक है, यहाँ पर maximum limit है up to rupees 50 lakhs। moving on, capital gain has to be invested। तो अगर आपको सपोज 60 lakhs का कैपिटल गेन हुआ, आपने उसमें से 50 लाख के बॉन्ड्स खरीद लिए, आपको घर नहीं खरीदना था तो आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, जो 10 लाख है वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। ठीक है, तो ये उन केसेस में आ जाएगा जहां 54 या 54F से आप नहीं बेनिफिट लेना चाह रहे हो या ना नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो आप EC में बेनिफिट ले सकते हो। 54F, now 54F is exactly ulta to what 54 was। 54 was that you have transferred a residential house property and invested in a residential house property। 54F is transferred any property other than residential property and invested in the residential property। जैसे खाली प्लॉट था वो बेचा और रेसिडेंशियल हाउस खरीदा, तो कहाँ बेनिफिट मिलेगा, 54F में। तो इंडिविजुअल है, HF है, any LTC other than residential house
should not own more than one residential house on the date of transfer and should not purchase a new residential house or construct within 2 years or 3 years after the date of transfer. You have to purchase or construct, again same 54 jaisa, 1 year before, 2 years after, or construct within 3 years after the date of transfer. यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर अगर आपको पूरा पूरा एग्जेम्पशन चाहिए तो पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर आपने पार्ट कंसिडरेशन इन्वेस्ट किया तो आपको प्रपोर्शनेट गेन जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा. ठीक है, जितना प्रपोर्शन, अगर आपने आपके कंसिडरेशन का 20% इन्वेस्ट किया तो आपका 20% गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट. ठीक है, सो दीज आर दी एग्जेम्पशंस. हर एग्जेम्पशन की स्पेसिफिक कंडीशन ध्यान रखो और एग्जामिनेशन में ध्यान से सोचो कि सारी कंडीशंस के हिसाब से हमारे ऊपर कौन सा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल हो रहा है. लास्टली, हर एग्जेम्पशन के कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं. जैसे आपने 54 में कोई रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया और उसको अगर आपने विद इन 3 महीने बेच दिया, एग्जेम्पशन ले लिया और फिर 2 महीने बाद उसको बेच दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा. लॉक इन पीरियड्स हैं हर पर्टिकुलर सेक्शन के. तो देखो, लॉक इन पीरियड बोला है 54, 54B, 54D, ये 3 हमारे लिए रेलेवेंट थे सेक्शंस इंटर सिलेबस के लिए. जो भी आपने न्यू एसेट परचेज करी है वो 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो अब इस एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर दिया जाएगा. 54EC में लॉक इन 5 साल है, अभी हमने पढ़ा, तो पुराने जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुए थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे. और 54F में आपको ना तो वो नई एसेट बेचनी है 3 साल में और ना ही कोई नया एसेट खरीदना है विद इन 2 years or 3 years. Otherwise, the gain that was earlier exempt would now become taxable. So these are the lock-in provisions that are to be kept in mind when you want to claim exemption under section 54 or 54B, D, etc. See, okay. So these are the exemptions applicable. Moving on to the last part, that is taxability under section 111A, 112 और 112A. कि अब हम समझ लें कि टैक्स कैपिटल गेन में कब कब कैसे कैसे लगता है. तो 3 स्पेशल रेट्स हैं टैक्स की. ठीक है, बाकी जो भी कैपिटल गेन होगा जो इन तीनों में नहीं फॉल होगा वो नॉर्मल आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कोई सा भी कैपिटल गेन हो उस पर स्पेशल रेट ही लगती है, तो ऐसा नहीं है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A में कवर्ड है तो ठीक, अदरवाइज अगर कोई जैसे आपने कोई लैंड बेची और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसके लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, ये आपके रेगुलर रेट से टैक्सेबल होगा. ठीक है, चलिए. Tax on short-term capital gain and transfer of equity shares, units, and on which STT is chargeable at the rate 15%. In case of residential individual and HUF, unexhausted basic exemption limit will be reduced. No deduction under Chapter 6A can be claimed. Very important point. Okay. एंड इन केस ऑफ IFSC STT नहीं भी होगा तो भी 15% का ही रेट लगेगा. अब ये पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपके मॉड्यूल में ही है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा. अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब सपोज मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ, मेरी से फॉर एग्जाम्पल टोटल इनकम हुई है लेट अस से 1,70,000. ठीक है, जिसमें से मेरी कैपिटल गेन की इनकम है 70,000 और मेरी अदर इनकम है 1 लाख. मेरा 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है नॉर्मली, है ना, तो 1 लाख तो यूज हो जाएगा. अभी जो बचा हुआ 1.5 लाख का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ये मैं इसके अगेंस्ट यूज कर सकती हूँ. जो बचेगा उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा. तो अपन थोड़ा बड़ा फिगर लेके देखते हैं तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा. सपोज आपका 4 लाख का इनकम हुआ टोटल, जिसमें से 1 लाख की रेगुलर इनकम है और 3 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपका 2.5 लाख में से 1 लाख तो यूज हो गया, बचा हुआ 1.5 लाख आप यहाँ एडजस्ट करोगे, बैलेंस 1.5 लाख पर आपको 15% से टैक्स देना है. ठीक है, स्लैब रेट नहीं लगेगा. सो अनएग्जॉस्टेड, इफ देयर इज एनी अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट देन यू कैन क्लेम दैट अगेंस्ट दिस इनकम. मूविंग ऑन फर्स्ट टू 112A, जो मैंने आपको बताया था 1 फरवरी वाला, है ना, 1 फरवरी 2018 वाला जो प्रोविजन था, नया सेक्शन आया था. एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख
on transfer of equity shares, unit of equity oriented fund shall be taxable at the rate 10% if STT has been paid on acquisition and sale of equity share and on sale of units of equity oriented mutual fund. Again, resident individual HF है तो unexhausted basic exemption limit can be utilized and the limit will be taxable rate will be 10%. No deduction under chapter 6A and rebate under 87A is allowed. ये बहुत important point है. जो rebate होती है ना 87A की हमारी 5 लाख तक की इनकम वाली, वो यहाँ पर इस इनकम में से नहीं दिया जाएगा. Lastly, 112 is the general taxation rate for long-term capital gain. Long-term capital gain has a general rate 20%, but it is not applicable in case of short-term capital gain. ठीक है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे short-term capital gain को 15% पे taxable कर देते हैं. ऐसा नहीं है, ध्यान रखो कब 15, कब 10, कब 20. Any long-term capital gain other than 112A shall be liable to tax at the rate 20%. Again, resident individuals HF जो है वो basic exemption limit को exhaust कर सकते हैं. Non-corporate, non-resident foreign company अगर unlisted securities को transfer करती हैं तो 10% से tax निकाल सकते हैं without giving the indexation benefit. Capital gain on transfer of listed securities or zero coupon bonds shall be taxable at the rate 10% without benefit or 20% with benefit, whichever is beneficial. No chapter 6 से deduction. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, 111A, 112A और 112 तीनों में ही chapter 6A के deductions आपको नहीं मिलते हैं, है ना. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. ये सब चीजों को, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है. हम लोग ना सेक्शंस को क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं. ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है स्पेशली इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, आपको इन सेक्शंस को समझ करके सॉल्व भी करते आना चाहिए. तो यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन कि हाँ ठीक है देख लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया. ऊपर ऊपर से नहीं देख सकते, आपको हर सेक्शन के छोटे छोटे माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखना जरूरी होता है. तो जैसे मैं हर सेक्शन आपको पढ़ाती जा रही थी, मैंने आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट करवाए, है ना. आपने नोट किया होगा कि अच्छा हाँ इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखो, इसमें रेसिडेंट होना चाहिए, इसमें इंडिविजुअल के ऊपर है, इसमें कंपनी का पॉइंट है. तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने के भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी. रीजन कि हम लोग ना चैप्टर तो बहुत बार पढ़ लेते हैं, ठीक है कि हाँ रीड कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तब प्रॉब्लम आने लग जाती है. वो इसीलिए क्योंकि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उसके बारे में नहीं समझते. क्वेश्चन को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसको इंटरप्रेट करके सेक्शंस को उन क्वेश्चंस में अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, वो भी हमें आना जरूरी है. तो जितना हमारा प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उतना ही हमें क्वेश्चन सही से सॉल्व करना भी जरूरी है. सो ये चीज ध्यान में रखनी है. With this, we complete the overall revision of capital gain. I hope this helped you. अगर कहीं भी आपको कोई भी चीज में दिक्कत आई हो इस पूरे टॉपिक में तो बिल्कुल आप बताएं. एंड इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो, we'll discuss and we'll surely help you out. So all the best for your examinations. And again, as I told you in the last video, if there is something that you are any one of you has a problem कि ये वाला टॉपिक हम लोगों को नहीं समझ आता, दिक्कत आती है. जैसे लास्ट टाइम भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने लाइक दे हैड कमेंटेड कि एडवांस टैक्स वाले प्रोविजंस में दिक्कत है, काफी सारे लोगों का था, तो मैंने अलग से वो वीडियो भी शेयर किया था. सो ऐसा कुछ अगर आपको कभी लगे तो बिल्कुल फील फ्री टू डिस्कस.